मैं अब लाइव हूँ, अब मुझे आवाज ना आए। Hello and assalamu alaikum. Class, are you there, BSN? ओके। आई होप कि तुम सब बिल्कुल फिट होगे। रमज़ान कैसा चल रहा है तुम लोगों का? आज तो वैसे ही वेदर इज़ क्वाइट गुड आउटसाइड। अच्छा मौसम हो गया खैर से रोज़ों में जी। और आई होप कि सब महफूज और सेफ भी होगे कोरोना जैसे पेंडेमिक से, एंड योर फैमिली both will be safe from the ongoing pandemic COVID-19. स्लाइड्स वगैरह हम लोग व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं। तो लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स कह रहे थे जिनके पास बुक्स नहीं है, तो कम से कम जब तक बुक्स नहीं परचेज करते या हॉस्टल से नहीं लेते तो वहाँ से कंटिन्यू रखें। And today what we are going to study is another nutrition chapter, which is diet therapy in the diseases of endocrine glands and metabolism. So specifically the topic which is the part of our nutrition coursework is the diet therapy in the diseases of in the diabetes mellitus. But we will cover the diet therapy in the diseases of endocrine glands, because diabetes is also caused by the deficiency of the hormone. So endocrine system is involved in diabetes mellitus. So it comes under the diseases of the endocrine glands and the metabolism, and definitely metabolism is also affected in diabetes mellitus. So today we will study basically the diet therapy in diabetes mellitus. This is one of the important topic of the nutrition, as like other topics. No doubt other topics are also important, but this is one of the very important topic, which is the maintenance of the diabetes mellitus through the diet, or how can we manage the ongoing diabetes mellitus with with the changes in our diet. Because as far as diabetes is concerned, we all know that selection of the food is very important thing for the patient, because there are quite often foods which are not allowed for the patient of the diabetes mellitus. We all know that the sweet food, the sugary food items, they are not allowed in the diabetes. But along with that food items, there are certain other also food items which are considered not good uh, for the improvement of the disease. So the improvement, and we all know that diabetes is a disease which has no cure right now. It can only be controlled. It can be controlled, but it cannot be cured. So 100% it is not cured, but with the selection of a very good diet, we can manage it as well. We can manage it in a very good way, with the help of the lifestyle changes, with the help of the dietary changes, with the help of the exercise, and definitely the hypoglycemic or drugs, and with the help of the insulin, we can control it. But it is a disease which is not 100%, which cannot be cured. And so we will say that diabetes is the lifetime disease. So it is better to say that diabetes mellitus is the
lifetime disease which continues with your life. As long as you are alive, the disease will go, will remain with yourselves. So because it has no cure, even in the world it has no cure, it can only be managed, it can only be improved, its symptoms can be controlled, but the whole disease cannot be controlled, whole disease cannot be managed. So topic is very interesting, diet therapy in the diseases of diabetes mellitus or in the endocrine glands. So when we say about the disease of the endocrine glands, we have some further diseases as well along with the diabetes mellitus, and these diseases are, the first one is no doubt diabetes mellitus, second is hyperthyroidism or excessive leanness, and third is hyperinsulinism. So these are the three diseases which are uh, covered under the topic of the diseases of endocrine glands. And we all know that what are the endocrine glands. We will study the endocrine glands in biochemistry as well. We will study the topic of the hormones in our coming lectures. So endocrine glands are the organs of the internal secretion whose active secretions, the hormones, are passed directly into the bloodstream and affect the body in various ways. So these are the glands which secrete the small soluble molecules, and these molecules are called as the hormones. So basically, endocrine glands secrete the small molecules which are called as hormones, and they affect our body in various ways, because we have certain hormones, 9, 10 hormones or even more than that, which are released in our body, and these hormones play a very important role. Say they control, for example, if we talk about the insulin, it used to control our blood sugar level, and if you talk about the thyroxine, it control our basal metabolic rate. So hormones has numerous functions in our body. So that's why these glands are very important. So the functions of the endocrine gland is closely connected with the metabolism, and a change in the gland may produce a marked change in the metabolism. Definitely the hormones have a direct connection with the metabolism, because these are the regulatory compounds of our body. Hormones are regulatory compounds of our body. They help in the regulation of the body, they help in the balance of the body. So they are directly connected with the change in the metabolism. If there is any change in the secretion of the hormone, then the metabolism will also be affected as well. Condition caused by the changes in the endocrine gland which can be helped by changes in diet are diabetes, hyperinsulinism, and hyperthyroidism. These are the three diseases which are the conditions basically which are caused by the changes in endocrine glands. So whenever there will be the change in the system of endocrine system, then definitely there will be certain disorders in our body, and three of these disorders or diseases are listed. So one is diabetes, second is hyperinsulinism, and third is the, जी क्या क्वेश्चन था किसी का अभी, which was the question, what was the question? So coming towards the diabetes mellitus, which is the main topic we will cover. So what is diabetes mellitus? So there is another disease which is called as diabetes insipidus. Anyone know about the disease diabetes insipidus? Because this is diabetes mellitus. We know that commonly this is called also as sugar, जिसको हम आम लफ्जों में शुगर भी कहते हैं, ठीक है. डायबिटीज मेलाइटस उर्दू में ज़ियाबतीस हम जिसको कहते हैं, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, इन द एशिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. दिस इज़ वन ऑफ द fastly growing disease in the world now, fastly expanding disease in the world, and even children are going to affect this disease. Because what is the reason why children are even getting affect from this disease very quickly? Because of our lifestyle changes, because of our dietary habits, because of our personal selection of the food which is not good for our body. So
Diabetes is expanding because we are leading the sedentary lifestyle, because exercise, physical activity हमने अपनी जिंदगी से निकाल दी है. That's why it is going to be very common these days. अच्छा जी, पहले ही रिक्वेस्टें आने लगी हैं. आज कम पढ़ना है, क्यों? आज कोई खास बात है? चलो स्लोली शुरू तो किया है इंशाल्लाह. ले ये है कम ज़्यादा की नहीं होती बात. द थिंग इज के जितना तुम लोगों को एब्जॉर्ब हो जाए, समझ आ जाए, बिकॉज I already told you that nutrition is quite more easy as compared to biochemistry, and terminologies here are not as difficult. Course content is not as difficult as biochem. So if we learn this, if we learn the whole chapter, even पूरा भी कर लें खत्म चैप्टर, तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा, बिकॉज इट इज क्वाइट इजी आई थिंक. तो जी डायबिटीज मेलाइटिस पे आ जाए जी. डायबिटीज मेलाइटिस सबसे पहले तो होती क्या ठीक है क्या डायबिटीज मेलाइटिस? So it is a condition in which the secretion of insulin by the islets of Langerhans and the pancreas is deficient or absent. ये तो हम सबको पता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज को क्या करता है, बेसिकली ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाता है. जो खाना आपने खाया है, कार्बोहाइड्रेट फूड जो आपने लिया है, उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है. और इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में वैसे ही पड़ा रहेगा. इंसुलिन इज द हार्मोन विच इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स. इंसुलिन एक हार्मोन है जिसने सेल्स को कहना है कि भाई ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करो, यूटिलाइज करो ग्लूकोज को, वरना आपका ग्लूकोज वैसे ही पड़ा रहेगा, वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका. एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब सेल्स जो हैं ग्लूकोज को यूज करेंगे. इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज देन व्हाट विल हैपन? इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन देन व्हाट विल हैपन? बेसिकली ग्लूकोज विल रिमेन देयर और हमारा वहीं पर रहेगा ग्लूकोज, और आपका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है. तो डायबिटीज जो है, इसका जो रिस्पॉन्सिबल जो कॉज है, जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, दैट इज इंसुलिन. ठीक है. और इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? इंसुलिन इज रिलीज बाय द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज. ठीक है. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक सेल्स हैं पेनक्रियाज में. ठीक है. यहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स in the pancreas. One is alpha cells and one is beta cells. ठीक है. एक इंसुलिन रिलीज करता है बीटा सेल्स, और जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं. ठीक है जी. तो इंसुलिन जो है जी वो रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज मेलाइटस के लिए. व्हेन देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. अब देखो ये जेनेटिक डेफिशिएंसी भी हो सकती है इंसुलिन की. ठीक है. और ये टाइम के साथ भी हो सकता है. तो इसी वजह से वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है. हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस भी है, तुम लोगों ने और भी सब्जेक्ट्स में पढ़ते होंगे. टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी है, यानी कि एक इंसुलिन डिपेंडेंट है, एक इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट है. इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो आपकी जेनेटिक है, जो आपको फादर फोर फादर से आपको मिल रही है विरासत में. ठीक है. बिकॉज देर आर सम डिजीजेस विच आर हेरिडिटरी डिजीजेस एंड विच पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. सो डायबिटीज इज वन ऑफ द डिजीज विच पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो कि फादर फोर फादर से और पूरी फैमिली में इवन हो जाती है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना, ये समझ लो कि डेंजरस है. बिकॉज इस डिजीज की वजह से जो है ना, देर आर सर्टन डिजीजेस विच कैन बी कॉज्ड इन आवर बॉडी. ठीक है. तो हमने कोशिश तो यही करें कि हम लाइफस्टाइल इतना अच्छा रखें कि अगर हमारी फैमिली में है भी तो हम इससे बच सकें. वी कैन प्रिवेंट. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर डैडी को है तो जी बच्चों को भी होनी है, वालदा को है तो बच्चियों को भी. इस तरह से इसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि पेरेंट्स में है तो बच्चों में आएगी, बट वी कैन प्रिवेंट इट. थोड़ा सा अपने हम डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल अच्छा रखें तो इवन वी कैन प्रिवेंट इट. हमारे खून में भी है तो हम इससे बच सकते हैं. इट इज करेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, glycosuria accompanied by polyuria, polydipsia, polyphagia, and if untreated for a long time by loss of weight. So common symptoms तुम लोगों ने सुना होगा. हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स कि शुगर इंक्रीज हो जाना. ग्लाइकोसूरिया आपके यूरिन में शुगर आ रही है. ठीक है. पॉलीयूरिया
आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है, थर्स्ट बहुत ज़्यादा, पॉलीडिप्सिया, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, थर्स्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है, पॉलीफैगिया, भूख, ठीक है, बार बार लगना, भूखा ज़्यादा लगना, और यूरिन यूरिन बहुत ज़्यादा आना, पॉलीयूरिया मीन्स के यूरिन की फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, के यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, पॉलीडिप्सिया के मुंह बहुत खुश्क हो रहा है, प्यास बहुत लग रही है। तो ये सारे जो है ना, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर का बढ़ जाना, ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में शुगर का आ जाना, पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया, प्यास बहुत ज्यादा लगना, पॉलीफेगिया, भूख बहुत ज्यादा लगना। एंड इफ अनट्रीटेड फॉर लॉन्ग टाइम, अगर बिल्कुल हम इसको इग्नोर कर दें, आपको नहीं समझ आ रही किस चीज़ के सिम्टम्स हैं, यू आर नॉट गोइंग टू डॉक्टर, यू आर नॉट गोइंग फॉर द ब्लड टेस्ट, तो फिर आपका जो है ना वेट लॉस एकदम से बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। एंड देन डेफिनेटली जब इतना वेट लॉस होता है, देन डेफिनेटली पेशेंट गो टू डॉक्टर के जी क्या मसला है, फिर समझ आती है कि जी ये तो डायबिटीज़ हो गई है। There may be many other complications which develop as a result of the disease. For example, reduced resistance to infection, tuberculosis, neuritis, pruritus, gangrene, and changes in eyes and the kidneys. अब इसके साथ साथ if uncontrolled, if diabetes mellitus is uncontrolled, ठीक है, तो अनकंट्रोल अगर हो जाएगी ना तो बहुत ही खतरनाक है। मैं तो कहूँगी कि देयर इज रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से आपकी जो इम्यूनिटी है ना, दैट इज गोइंग टू वेरी वीक, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक हो जाता है। एंड अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो व्हाट विल हैपन, आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाओगे टुवर्ड्स द डिजीजेज ना, के डिजीजेज जी होने के चांसेस जो है ना आपको वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एंड स्पेशली द इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीजेस, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है ना तो डायबिटीज़ के पेशेंट का वो जल्दी ठीक नहीं होना। इसलिए तो कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपने फुट का, पैरों का बहुत ख्याल रखें, बिकॉज इफ देयर विल बी एनी वुंड, एनी इंजरी, कोई भी जख्म हो जाएगा तो फिर वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इन लोगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस और फिर इन्फेक्शन ठीक होने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा फिर डिले हो जाते हैं, ठीक है, लिंगर ऑन कर जाते हैं। फिर इन लोगों में टीबी होने के चांसेस, और ज़्यादातर जो है तुम लोगों ने शायद न्यूरोपैथी सुना हो, ठीक है, कि हाथ पाँव सुन्न हो जाना, हाथ पाँव में जलन होना, ठीक है, अगर कोई पाँव पे चोट लग जाए तो पेशेंट्स को पता नहीं चलती, तो न्यूरोपैथी होने के चांसेस, गैंग्रीन, ठीक है, होने के चांसेस। गैंग्रीन इज ऑल्सो हमारी डिजीज है वेन्स की, वस्कुलर सिस्टम की, जिसमें ब्लड सप्लाई आपकी नहीं पहुंचती पैरों को ना, और जख्म हो जाते हैं। तो जी, और सबसे ज़्यादा आंखों में, किडनीज को ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो दीज आर द बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, सिम्टम्स और इसकी कॉम्प्लिकेशंस हम याद रखें तो अच्छा है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के जी अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं which are responsible for the cause of the diabetes mellitus. What are the basically factors या predisposing factors हैं जिसको हम causes भी कह सकते हैं इसके, ठीक है। अब the various predisposing factors are hereditary, age, sex, obesity, and stress. So these are the certain factors which are responsible for the cause of the disease, ठीक है। कौन कौन से factors हैं हमारे पास, सबसे पहले है hereditary. A familial tendency to diabetes has been found to exist. जो मैंने अभी शुरू में भी बात की कि genetic factors they are involved, ठीक है, और अगर आपको डायबिटीज़ 40 साल से पहले हो रही है, ठीक है, 40 के बाद तो वैसे ही बीमारियों की जो शरह है वो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है ना, तो इफ़ डायबिटीज़ इज़ हैपनिंग बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर्स, तो इसका मतलब ये है कि ये हेरिडिटरी है, ठीक है, और ये यंग अडल्ट में 20 साल में, 21 साल में, ठीक है, इस तरह से बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो 40 से अगर पहले हो रही है तो जी ये हेरिडिटरी है। Age. This disease occurs at all ages, but a greater percentage of the cases occurs in the person over 45 years of age. तो नॉर्मली ये डिजीज जो है ना किसी भी एज में हो सकती है। मैंने पहले ही बताया है कि डिपेंडिंग अपॉन कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो फिर तो यंगर एज में हो जाएगी बाय बर्थ, ठीक है, और इसके अलावा भी किसी भी उम्र में हो सकती है, बट जो है ना 40-45 के बाद, मिडिल एज के बाद, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी स्लो हो जाती है, तो उस टाइम पे जो है ना आप इतने एक्टिव नहीं रहते हो, तो उस टाइम पे डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। द डिजीज, अब सेक्स का क्या है, इसमें फ़र्क है, कोई मेल फीमेल किसी में ज़्यादा होती है, तो डिजीज इफेक्ट्स बोथ सेक्सेस। द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज इज समवट ग्रेटर इन मैन देन इन वुमेन, तो नेचुरली दोनों सेक्सेस में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट ये देखा गया है
कि मेल्स में जो है ना इसके होने के चांसेस नेचुरली ज़्यादा हैं, ठीक है? ठीक है, तो मेल्स में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी, लुब्ना बतूल का सवाल क्या आया है कि जी अगर एक पर्सन को डायबिटीज़ से भी गुज़र रहा है और साथ ही हाइपरटेंशन भी है, बिल्कुल जी, हम इस पे बात करेंगे जब हम इसके डाइटरी मैनेजमेंट में आएँगे। ऐसा एक नहीं, कई लोगों को है कि डायबिटीज़ भी है और साथ में दिल का मरीज़ भी है और साथ में हाइपरटेंशन भी है, ठीक है? तो उसमें फिर ये है कि डायबिटीज़ में स्वीट चीज़ें मना हुई हैं, चीनी-शीनी मना हुई है, तो उसमें नमक, हाइपरटेंशन में साथ में सॉल्टी चीज़ें भी, नमक और ऑयल वगैरह, घी, मक्खन भी मना हो जाएगा, ठीक है? यानी कि डाइट और उसकी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है? ज़ाहिर है अगर मैंने इसलिए बताया कि इफ देयर इज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ तो इट कैन लीड टुवर्ड्स नंबर ऑफ डिजीज़ेज़। अनकंट्रोल हो जाएगी तो साथ में गुर्दों की डिजीज़ भी हो जाएगी, अल्लाह ना करे साथ में आँखों की भी हो जाएगी, साथ में इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिस इज़ द बिकॉज़ आई हैव सीन मेरी भी फैमिली जो है वो डायबिटीज़ की हिस्ट्री है बिल्कुल, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है? चाचा, ठीक है, सबको। तो इस वजह से जो है ना आई नो कि दिस इज़ द वेरी डेंजरस डिजीज़ बिकॉज़ एक डिजीज़ के साथ जो है ना दूसरी डिजीज़ेज़ होने के और स्पेशली जो है आई साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस, ग्लूकोमा होने के चांसेस, रीनल फेलियर होने के चांसेस इसमें बहुत-बहुत ज़्यादा हैं। तो बेस्ट वे इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस डिजीज़। तो जितनी ज़्यादा साथ में डिजीज़ेज़ आ जाएँगी इट मीन्स कि उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, ठीक है? और उतनी ज़्यादा जो है मैनेजमेंट जो है ना वो फिर आपको करनी स्ट्रिक्ट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, यानी कि खुद पे जबर वाली कहानी कि ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। डेफ़िनिटली हमारी डाइट से फिर काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएँगी। बट स्टिल देयर आर अपॉर्च्युनिटीज़, ऑप्शंस हैं कि ज़ाहिर है फिर ऐसे बंदों को ये तो नहीं है कि ज़िंदगी में अल्लाह ने फिर और भी चीज़ें दी हैं खाने की जिनसे आप गुज़ारा कर सकते हो, ठीक है? बट इट विल बी डेफिनिटली डिफिकल्ट थिंग। Then the obesity. This is also the cause of the diabetes mellitus. The incidence of diabetes is greater among the obese persons than in the persons of the normal weight. ये it has been observed कि जो obese person है उसमें इसकी अमाउंट तादाद ज़्यादा है, ठीक है? अगर आपका वेट नॉर्मल है तो इसका मतलब है डायबिटीज़ होने के चांसेस कम है। बट इफ़ यू आर ओवर वेट तो इट मीन्स कि डायबिटीज़ होने के चांसेस जो हैं वो आपके ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है? एक तो फैमिली हिस्ट्री है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मेल्स में ज़्यादा हैं। तीसरा ओबीस लोगों में जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं, वज़न जिनका ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा है। फोर्थ थिंग इज़ द स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ वेरियस टाइप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल frequent infections, worry may also contribute to the development of the disease. So जी स्ट्रेस इज़ ऑल्सो द मेजर फैक्टर, ठीक है? अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, कोई ट्रॉमा हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म में ऐसी चेंजेस आती हैं कि डिजीज़ के जो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस की वजह से हर हाल में होनी है, बिकॉज़ स्ट्रेस के साथ और चीज़ें भी बड़ी रिलेट करती हैं। आपका हाइपरटेंशन जो है, आपका हार्ट डिजीज़ेज़ जो हैं, ठीक है? तो स्ट्रेस के साथ जो है हमारी काफ़ी डिजीज़ेज़ रिलेट कर रही हैं। जी लुब्ना बतूल, डेफिनिटली इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, बट आई विल टेल यू, आई मस्ट टेल यू कि मेरी फैमिली में डैडी हैं, बाकी भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, डायबिटीज़ भी है, हार्ट पेशेंट भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं, तो दे आर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है? ज़ाहिर है हमारे पास मेडिकेशन तो है, हाइपरटेंशन की भी मेडिकेशन है, डायबिटीज़ की भी है, और साथ में नॉलेज भी है कि आपने मेंटेन कैसे करना है, आपने ख्याल कैसे रखना है। तो बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट आप लोगों की बल्कि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक द पेशेंट अवेयर ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीजेस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द डिजीजेस। कि आप पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस पहले बताओगे, ये नहीं ख्याल रखोगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, और साथ में जो है ना हमें मैनेजमेंट जो है ना वो हमने करनी है। नो डाउट डॉक्टर्स आर देयर टू प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन, बट इसके अलावा जो मैनेजमेंट है, और स्पेशली जैसे मैं बता रही हूँ डाइटरी जैसे मैनेजमेंट है, तो यू कैन गाइड द पेशेंट। डायबिटीज़ के लिए बीइंग अ नर्स आपको मैनेजमेंट जो है ना वो डाइटरी मैनेजमेंट, जो आपकी काउंसलिंग है, ब्रेन काउंसलिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट की हमेशा ब्रेन काउंसलिंग जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ब्रेन काउंसलिंग से ही आधा पेशेंट तुम लोग सही कर सकते हो। जो गाइडेंस है, प्रॉपर गाइडेंस अगर उसको मिल जाए करनी है, डूज और डू नॉट्स वाली कहानी। So these are the predisposing factors: hereditary, age,
सेक्स, ओबेसिटी, स्ट्रेस, इसके अलावा और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कि खाने में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड और शुगरी फूड आइटम्स हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जाहिर है आपका ग्लूकोज लेवल राइज होता जाएगा, फिर वो इतना राइज हो जाएगा कि आपकी जो ग्लूकोज है ना, वो आपकी किडनीज जो है ना वो फिल्टर करने के काबिल नहीं रही। अगर आप ग्लूकोज या शुगरी फूड आइटम्स इतने ज्यादा ले रहे हो दैट योर किडनीज आर नो मोर एबल टू फिल्टर इट एनी मोर, किडनीज में अब इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उसको फिल्ट्रेट कर सकें, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, the glucose will ultimately started releasing into your urine, and that is the confirmatory test of the diabetes mellitus. If we are taking too much sugary items and too much carbohydrate food, उसका end product है glucose. इतना ज्यादा हम लेना शुरू हो गए हैं और बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज आपकी यूटिलाइज नहीं हो रही और वहीं पे पड़ी रही है, और किडनीज भी हैं, उनकी भी एबिलिटी अब इतनी नहीं है, ग्लूकोज हाई क्वांटिटी में है, एंड किडनीज आर नो मोर एबल टू फिल्टर इट एनी मोर, कि किडनी भी अब उसको फिल्टर नहीं कर रही और वो आपके यूरिन में पेयर होने लग गई है, तो यूरिन में आपका जब ग्लूकोज आने लग गया है, तो दिस इज वन ऑफ द very confirmatory test for the diabetes mellitus. The person is suffering for the permanent diabetes mellitus और हमें पता है कि जी इसका क्योर जो है वो नहीं है. Changes in metabolism in diabetes mellitus. अब diabetes mellitus में what are the changes basically which are taking place, because we all know कि carbohydrates are very much involved in the diabetes mellitus, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर है इसका मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा बहुत इफेक्ट तो होगा डायबिटीज के पेशेंट्स में. Now, carbohydrate metabolism. Carbohydrate is not stored in liver and muscles as glycogen, nor it can be adequately utilized in the body because of the lack of the insulin. अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या प्रॉब्लम आएगी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहे थे हमारी बॉडी में नॉर्मल पेशेंट में, ठीक है, डायबिटीज के पेशेंट्स में दैट कार्बोहाइड्रेट्स विल नो लॉन्गर अवेलेबल टू स्टोर एज ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल्स, ठीक है, ना ही स्टोर हो रहे हैं ना ही प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं बॉडी में, ठीक है, बिकॉज इंसुलिन की डेफिशिएंसी है. तो क्या होगा, ग्लूकोज देयरफॉर accumulates in the blood until it reaches a level higher than at which the kidneys can filter it, ठीक है, जो बात मैंने अभी बताई है कि अल्टीमेटली क्या होगा, ना ही तो ग्लूकोज स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन और ना ही जो है वो यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, सेल्स ना ही उसको यूज कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन दैट ग्लूकोज विल स्टार्टेड accumulating इन आवर बॉडी, ग्लूकोज हमारी बॉडी में accumulate हो जाएगी और उस लेवल तक हमारे ब्लड में आ जाएगी कि अब किडनीज भी जो है ना, एक लेवल है किडनीज को फिल्टर कर सकती है, देयर इज अ लेवल. अब उस लेवल से अगर ग्लूकोज इंक्रीज कर जाएगी तो किडनीज विल नो लॉन्गर विल एबल टू फिल्टर इट, किडनी फिर उसको जो है ना वो यूरिन में जाने से प्रिवेंट नहीं कर सकती, ठीक है, एंड ग्लूकोज विल देन अपीयर और पास इनटू द यूरिन एंड ग्लाइकोसूरिया रिजल्ट्स, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा यानी कि यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो गई है. तो जी ये है जी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो चेंजेस आएंगी. द क्वांटिटी ऑफ द ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन may vary from 0.5 to 6% depend upon the severity of the disease. अब जो क्वांटिटी रिलीज हो रही है ग्लूकोज की यूरिन में वो जी वेरे कर रही है 0.5 से लेके 6% तक, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट की जो डिजीज है वो कितनी स्वेयर है, ठीक है, इनिशियल स्टेज है डायबिटीज की, एडवांस स्टेज है, वेरी एडवांस स्टेज है, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है, तो उस पर ये परसेंटेज सारी डिपेंड करेगी. जाहिर है जितना ज्यादा वो शुगर आइटम्स लेगा, कार्बोहाइड्रेट फूड्स लेगा, या इंसुलिन की जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी है या बिल्कुल लैक ऑफ इंसुलिन है, तो उस पर ये चीज जो है ना वो डिपेंड कर रही है. अब जाहिर है पर्सन तो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूज नहीं कर रहा, ठीक है, तो बॉडी को एनर्जी का सोर्स भी नहीं मिलेगा, बॉडी को वीकनेस भी हो जाएगी, मसल फटीक भी हो जाएगी, मसल वेस्टिंग भी हो जाएगी, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है. तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी में फिर हम क्या है, हम जाहिर है ऐसा नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल देंगे, छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा डायबिटीज मेलाइटस में, ठीक है. वी विल कंटिन्यू टू टेक द कार्बोहाइड्रेट्स, बट उसमें हमारी सिलेक्शन आ जाएगी ना कि हमने जो स्वीट यानी कि उसमें जो शुगर्स वाला है, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ये वाली कहानी हमने नहीं लेनी है.
बट उसके अलावा जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स हैं विच आर द गुड फाइबर्स, ठीक है, क्योंकि हमारी वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, व्हीट में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हमने सीरियल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वी विल स्टार्टेड टेकिंग दैट सीरियल्स एंड दैट वेजिटेबल्स। हमने सिर्फ शुगरी फूड आइटम्स को बिल्कुल डिलीट कर देना है। लेकिन इस जो है ना उसमें आप जो है वेजिटेबल्स वगैरह का इंटेक हम रख सकते हैं। जी हमजा का क्या क्वेश्चन आया है कि जी डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रुक्टोज यूज करना चाहिए। अब ये दिस इज द क्वेश्चन कि डायबिटिक पेशेंट्स कैन यूज द हनी, ठीक है, हनी जो शहद है वो डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं, बट इन रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, ठीक है, एक नॉर्मल अमाउंट में दे कैन कंज्यूम द हनी। द रीजन बिहाइंड इज के बिकॉज जो फ्रुक्टोज है इसको बॉडी में या सेल्स को यूज करने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। So fructose is the monosaccharide which does not depend on insulin for uptake of fructose by the cells, ठीक है, तो सेल्स को फ्रुक्टोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं दे कैन कंज्यूम फ्रुक्टोज, ठीक है, इन अ नॉर्मल अमाउंट, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट्स में ले सकते हैं, नॉट इन द वेरी लार्ज अमाउंट्स, बिकॉज वी ऑल नो दैट फ्रुक्टोज कैन चेंज इनटू ग्लूकोज इन आवर बॉडी। फ्रुक्टोज हमारी बॉडी में ग्लूकोज में चेंज हो सकता है, इस वजह से हम बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज तो नहीं, लेकिन ये है कि यस इन अ लिमिटेड अमाउंट, बिकॉज फ्रुक्टोज हमारे फ्रूट्स की शुगर भी तो है, तो हम कुछ एक दो फ्रूट्स ले सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं, तो हम नॉर्मल अमाउंट में फ्रुक्टोज ले सकते हैं। जी अब ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि गुड़ भी खा सकते हैं, शक्कर भी खा सकते हैं, हाँ अगर खालिस गुड़ मिल रहा है, क्योंकि आजकल तो सिंथेटिक ही मिलता है, उसमें भी उन्होंने मिलावट वगैरह की होती है चीनी की। हाँ अगर बहुत ज्यादा प्योर मिल रहा है तो यस इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट द पर्सन कैन कंज्यूम, बट अगेन दिस ऑल द थिंग्स डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज, कि उसका डायबिटीज जो है वो कितना कंट्रोल्ड है। अगर तो 100% डायबिटीज मेलिटस अंडर कंट्रोल है, द पर्सन is taking care and continue his her exercise and dietary management, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ठीक है, अगर तो बहुत अच्छी वो जिंदगी जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी उसकी अच्छी है, डाइट भी उसकी अच्छी है, ठीक है, एक्सरसाइज भी अच्छी है, तो यस यस वो कंज्यूम कर सकता है गुड़ शक्कर फ्रूट्स भी, ठीक है, मिल्क शेक्स भी, काफी चीजें वो ले सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि डायबिटीज मेलाइटिस उसकी कंट्रोल्ड फॉर्म में है, ठीक है, अगर तो कंट्रोल्ड है तो फिर ही और शी कैन कंज्यूम। वो आपको पता जो जो पेशेंट होता है ना फिर उसको पता होता है कि किन चीज़ों से कब मेरी बढ़ रही है कब मेरी लो हो रही है शुगर, ठीक है, तो हमने अगर उसको कंट्रोल रखा हुआ है तो यस ऑन एंड ऑफ दिल कर रहा है कभी कभी तो वो वीक में वन और ट्वाइस टाइम्स, ठीक है, ही और शी कैन कंज्यूम द थिंग्स। लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही है स्वेरिटी ऑफ डिजीज पे, डिजीज स्टेज कौन सी है, डिजीज कितनी कंट्रोल है, ठीक है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड कर रही हैं। तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल है आप मैनेज अच्छी कर रहे हो तो आप कभी कभी गुड़ भी ले सकते हो, आप फ्रूट्स भी ले सकते हो, ठीक है, शहद भी आप लिमिटेड अमाउंट्स में ले सकते हो। शहद का तो मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि फ्रुक्टोज होता है उसमें, और उसमें जो है ना फ्रुक्टोज के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन हो फिर ये बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, इसके अलावा भी सेल्स में वो पास आउट कर सकता है, सेल्स उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, तो इस वजह से उसकी ज़रूरत नहीं है। अब जी ये जो डाइट चार्ट जो है ना, अब एक चीज जो है जो अमाउंट्स लिखी हुई है सीरियल्स 100 ग्राम्स, आई विल नॉट एडवाइज कि तुम लोग ठीक है ये याद रखो, बिकॉज दैट विल बी वेरी टफ कि हम जो है ना अमाउंट्स भी इनकी याद करें, ठीक है। अनदर क्वेश्चन is from the Muqaddas is fruit sugar cause diabetes. There's certain fruits which are allowed for the patients of the diabetes mellitus, and there are certain fruits which are considered very sweet like mangoes, ठीक है, so a diabetic patient can never consume the mangoes, मतलब कि बहुत रेयर केसेस में, मतलब कि जो है ना 1-2 slices only he or she can consume per day, वो भी तब जब आपकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है डायबिटीज की, ठीक है, तो देर आर सर्टन फ्रूट्स विच आर वेरी स्वीट इन नेचर, ठीक है, वेरी स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, नेचुरली जो बड़े मीठे होते हैं तो वो हम रेफर नहीं करते डायबिटिक पेशेंट्स को, जैसे मैंने बताया है मैंगोज हैं, ठीक है, बनानाज हैं, तो ये जो फ्रूट्स हैं ना वो आपने कम लेने हैं, बट देर सर्टन फ्रूट्स विच डायबिटिक पेशेंट कैन इजीली टेक लाइक गावा, लाइक मेलन, लाइक पीच, ठीक है, सो लाइक पपाया,
सो दीज आर द फ्रूट आइटम्स जो कि वो कंज्यूम लाइक ऑरेंजेस, ठीक है, तो वो एक आधा ले सकते हैं पर डे। ओनली वन फ्रूट इज अलाउड पर डे, ठीक है। और अगर उसमें मैंगोज हैं तो डेफिनेटली वो पूरा नहीं होगा, हाफ मैंगो इज अलाउड पर डे, ठीक है। तो यस, वो तो कंज्यूम कर सकते हैं। अगेन मैं बार बार वही बात कह रही हूँ, आपकी जो डाइट है ना वो डिपेंड कर रही है आपकी मैनेजमेंट पे, कितना अच्छा जो है पेशेंट मैनेज कर रहा है अपने डिजीज को। इफ द मैनेजमेंट इज गुड, ही कैन एंजॉय all the fruits, ठीक है, and all the food items. So the percentage of the calories basically, definitely if the person is suffering from diabetes और अगर वो ओबीज है तो डेफिनेटली उसकी कैलोरीज सबसे पहले कट डाउन होनी चाहिए, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट टाइप ऑफ द डायबिटीज द पर्सन इज सफरिंग, फॉर एग्जांपल जुवेनाइल डायबिटीज है, एडल्ट ओबीज डायबिटीज है, एडल्ट डायबिटीज विद नॉर्मल बॉडी वेट है, ठीक है। अब जुवेनाइल जो डायबिटीज है दैट इज द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज एट अ वेरी अर्ली एज, यंग एज में जो हो रही है, जिसको हम हेरिडिटरी भी कह रहे हैं, ठीक है। तो इफ देयर इज जुवेनाइल डायबिटीज देन कार्बोहाइड्रेट्स पेशेंट को जो लेने हैं दैट इज 40%, फैट्स भी जो लेने हैं दैट इज 40%, और प्रोटीन्स जो लेने हैं दैट इज 20%। और अगर तो पर्सन ओबीज है तो फिर हम फैट्स ज़ाहिर है कम कर देंगे, ठीक है। 40% फैट्स थे तो एडल्ट डायबिटीज़ में आप कार्बोहाइड्रेट्स मेजर दे दो और उसमें भी आपके पॉलीसेक्राइड्स हों, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जब हम लिख रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि शुगर्स वगैरह, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि उसमें पॉलीसेक्राइड्स, आपके जो फाइबर्स हैं, दे आर वेरी गुड फॉर द कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। तो फाइबर फूड आइटम्स आर वेरी गुड फॉर द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो हम ये पेशेंट को इजीली दे सकते हैं, ठीक है जी। तो जो जुवेनाइल डायबिटीज में 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 40% फैट्स, 20% प्रोटीन्स। ओबीज डायबिटीज में फैट्स वी विल कट डाउन, 20% फैट्स, 60% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 20% प्रोटीन्स, ठीक है। इसी तरह से जो एडल्ट डायबिटीज है विद नॉर्मल अगर बॉडी वेट है तो फिर वही होगा कि 40% फैट्स, 40% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 20% प्रोटीन्स। ये हमारा क्राइटेरिया है डायबिटिक पेशेंट्स का जो डाइट चार्ट होना चाहिए, कि 40% उनकी जो डाइट का हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट से आए, 40 फैट से आए, क्योंकि फैट्स का ऐसा रोल नहीं है। बट येस, इफ इंक्रीज द इंटेक ऑफ फैट्स, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो क्या है कि जी फैट्स हैं वो भी शुगर्स में चेंज हो सकती हैं, ठीक है। सो इन आवर बॉडी फैट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शुगर इफ दे आर प्रेजेंट इन हाई अमाउंट्स, ठीक है। फैटी एसिड्स जो हैं वो ग्लूकोज में चेंज हो सकते हैं, इसी तरह से ग्लूकोज भी अगर आप ज्यादा लो तो वो भी फैटी एसिड्स में चेंज हो सकता है। तो हमने जी फैट्स को 40% रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स को 40 और 20% प्रोटीन्स को रखना है। और ये जो नीचे टेबल है कि सीरियल्स कितने हो, चीज कितना हो, इनकी क्वांटिटी याद रखने की सच कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर कभी आएगा तो डाइट चार्ट वगैरह ही आएगा। इसके बाद है जी हिरा जफर का क्या सवाल है जी कि स्लीपिंग का कोई इफेक्ट है शुगर पेशेंट्स में। देखो स्लीपिंग का वो ऐसा नहीं है, अगर आपको नॉर्मल नींद आ रही है जितना होनी चाहिए 8-9 घंटे, ठीक है। हाँ यस, कि अगर किसी में स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, तो उसके कोई और कॉजेज भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, इनको पॉलीयूरिया यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज वेरी कॉमन अमंग दीज patients. So due to this complication, this can be possible that they have to go to washroom again and again during her sleeping disorder. थोड़ा सा sleep जो है वो disturb हो सकती है। Otherwise there is no link between the sleeping disorders and the diabetic patients, ठीक है। तो otherwise ऐसा सच नहीं है, frequent urination की वजह से, बार बार यूरिन आने की वजह से जो है they can go to washroom और जिससे नींद इनके डिस्टर्ब हो सकती है। अदरवाइज तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। ये हाइपरथायराइडिज्म एंड एक्सेसिव लीननेस, ये बेसिकली टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है कि अगर थायराइड की एक्सेसिव हो जाए सिक्रीशन तो फिर क्या होगा, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं इसको। बट दैट इज नॉट द बेसिकली द पार्ट ऑफ एक्सेसिव लीननेस है या हाइपरथायराइडिज्म है बेसिकली,
that is basically hyperthyroidism is the thyroid hormones, ठीक है. So if there is excessive secretion of the thyroid hormones, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो BMR है वो इंक्रीज हो जाएगा hyperthyroidism में, because the BMR will increase because thyroxine is the hormone which is responsible to control the basal metabolic rate of the body. So basal metabolic rate of the body is the metabolic rate when the person is at rest, when the person is not doing anything. So that is called as the basal metabolic rate. So when there will be increase in the energy expenditure, the patient must call upon all the body resources and may quickly use up the stores of fat and even the body proteins, so that the body waste such as the condition is usually treated. But before this is possible, the patient must have complete rest and a high calorie diet to provide for the increase in metabolism and to help to restore the wasted tissue. मतलब ये है कि जब आपका BMR बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो definitely what will happen basically, आपकी बॉडी जितने एनर्जी रिसोर्सेज है ना वो सबको कंज्यूम करना चाहेगी, ठीक है. एंड एनर्जी रिसोर्सेज कंज्यूम करने के लिए उसके पास एडिक्वेट फैट्स होने चाहिए, बिकॉज इफ देयर विल बी नो एडिक्वेट फैट्स देन बॉडी विल स्टार्टेड यूटिलाइजिंग इट्स ओन प्रोटीन. अगर बॉडी अपनी खुद की प्रोटीन्स को यूज करना शुरू हो जाए देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ मसल वेस्टिंग, ठीक है. मसल वेस्टिंग विल आकर कि अपनी बॉडी की प्रोटीन्स यूज करना शुरू हो जाएगी तो मसल वेस्टिंग और टिश्यूज की हो जाएगी. ये है हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है. और एक्सेसिव लीननेस का मतलब ये है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द malnutrition और फ्रॉम द मेन जो रीजन है एक्सेसिव लीननेस की वो तो malnutrition ही है, ठीक है. ठीक है जी. तो एक्सेसिव लीननेस जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपका मस्कुलर अगर मास मस्कुलर टिश्यूज अगर आपके काम होने लगे हैं तो इसका मतलब ये है कि malnutrition है, ठीक है. द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द malnutrition, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कैलोरी की डेफिशिएंसी है, डाइट आप अच्छी नहीं ले रहे, ठीक है, तो वो उसकी वजह से हो जाएगी एक्सेसिवली द पार्ट ऑफ आवर टॉपिक. ठीक है. अब हम बेसिकली बात करते हैं कि जो मेटाबॉलिक चेंजेस आपकी आ रही हैं डायबिटीज mellitus में, ठीक है. तो excessive leanness and hyperthyroidism, they are not as such related. So we will move towards the what are the changes basically which are happening in the diabetes metabolism. जो metabolic changes basically हो रहे हैं. I think carbohydrate metabolism is missing, so we will move towards the fat metabolism. So what will happen to the metabolism of fats during the diabetes mellitus? Fat is also not properly metabolized in diabetes mellitus. When the person is suffering from diabetes, तो उसका जो fats हैं वो भी properly metabolized नहीं होंगे. The availability of the carbohydrates determine how much fat is broken down, ठीक है. Because आपका first जो हमारा instant source of energy है that is carbohydrates, and if they are not available, then definitely ये डिपेंड करेगा कि आपके कितने फैट्स ब्रेक होने चाहिए थे, बिकॉज हमें एनर्जी भी फिर फैट से ही लेनी है. तो इस वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म में चेंज आएगा, फैट के मेटाबॉलिज्म में देयर विल बी अ चेंज बिकॉज देयर आर नो एज मच कार्बोहाइड्रेट्स फॉर द एनर्जी एंड फैट्स आर ऑल्सो using for the source of energy, then definitely the breakdown of the fat is greatly affected. Another thing is fatty acids are converted to ketone bodies in the liver, and the oxidation of ketone body is completed in other tissues of the body. So when carbohydrates are not available, then what will happen basically, Aliza? So carbohydrates are not available, then ketone bodies will be greatly produced in our body. आपका फर्स्ट लाइन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा तो बॉडी फैट्स पे शिफ्ट हो जाएगी. जब फैट्स पे शिफ्ट हो जाएगी तो फैटी एसिड्स जो हैं वो कीटोन बॉडीज बनाने लग जाएंगे, ठीक है. और कीटोन बॉडीज हमें पता है कि अगर ये ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में बन जाएं तो लीड टुवर्ड्स द डिजीज इज कॉल्ड एज कीटोएसिडोसिस, ठीक है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो जाती है और कोमा भी हो जाता है, ठीक है. तो बेसिकली फैट्स पे अगर आपकी बॉडी रहेगी, मेटाबॉलिज्म आपका फैट्स पे शिफ्ट करेगा तो ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है वो कीटोन बॉडीज ज्यादा बनाएगी. इन द एब्सेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आवर बॉडी विल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द कीटोन बॉडीज इन
greater amounts, and when they accumulate in the body they will cause the disease which is called as ketoacidosis. And what will happen in ketoacidosis? This will lead to dehydration and ultimately coma. So it is not a good situation. सो अनदर थिंग इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होगा, ठीक है, जो ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है. व्हेन देयर इज व्हेन देयर इज व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो फिर क्या होगा डायबिटीज मेलाइटिस में कि आपका जो एक्सेसिव ग्लूकोज है दैट विल नॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल्स, ठीक है. और आपकी जो है बॉडी में अगर ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज नहीं स्टोर हो रहा तो फिर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है, रेज हो रहा है, यानी कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया. अब जी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस आएंगी ड्यूरिंग डायबिटीज मेलाइटिस? सिंस कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स आपका फर्स्ट लाइन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी जब नहीं यूज हो रहा एनर्जी सोर्स के लिए, तो फिर क्या होगा, देयर इज इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ द टिश्यू प्रोटीन्स. डेफिनेटली बॉडी को तो एनर्जी चाहिए. बॉडी क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स आपके यूटिलाइज नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो वो कैसे यूज होंगे, ठीक है. इंसुलिन का काम ये है कि उसने बॉडी में ग्लूकोज को यूज करवाना है कि सेल्स उसको यूज करें फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, आप चाहे ग्लूकोज लो भी तो वो तो यूज नहीं होगी, वो तो वहीं पड़ी रहेगी और आपका ब्लड शुगर लेवल रेस करती जाएगी, आपके यूरिन में पास होने लग जाएगी. फिर क्या होगा कि लेकिन सेल्स को एनर्जी भी नहीं मिल रही. अब सेल्स क्या करेंगे, एनर्जी के लिए अपनी ही प्रोटीन को यूज करने लग जाएंगे, मसल वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है. और इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ द डाइटरी प्रोटीन्स, there will be increased oxidation of the dietary proteins, hence there is an increase in the nitrogen excretion leading to negative nitrogen balance. जाहिर है अगर बॉडी का जो बॉडी की अपनी प्रोटीन्स अगर यूज हो रही हैं फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपका जो नाइट्रोजन बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन फॉर्म्ड इन द बॉडी एंड नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी, ये दोनों जो प्रोसेसेस है ना इनमें इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है. सो इक्विलिब्रियम अगर नहीं रहेगा, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा आपकी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, एक्सक्रीट कम हो रही है, यूज ज्यादा हो रही है, तो आपका नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा. देयर विल बी नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है जी. तो ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए आपका जो इनटेक प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है, दैट विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम. अच्छा जी, अब that is very tough in Ramadan to continue the 2 hours lecture or to speak for continuous 2 hours na. So प्रोटीन्स को पढ़ के मेरे ख्याल में ये हम थोड़ी सी 5-10 मिनट की ब्रेक करेंगे, ठीक है. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स में बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आपका फर्स्ट लाइन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी नहीं दे रहे, ग्लूकोज वहीं पे बढ़ा देगा, बल्कि आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर देगा, स्टोर भी नहीं हो रही है आपकी ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो फिर क्या होगा, बॉडी को एनर्जी कैसे चाहिए, फिर ये होगा कि आपकी बॉडी जो है अपनी प्रोटीन्स को यूज करेगी फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी. अपनी प्रोटीन्स भी जब यूज होने लग जाएंगी तो बॉडी चली जाएगी नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में, ठीक है. तो इसका मतलब है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो रहा है डायबिटीज मेलाइटिस में. व्हेन टिश्यू प्रोटीन इज यूज्ड इन दिस वे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द बॉडी वेस्टिंग अकर्स, तो फिर क्या होगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा. जब आपकी बॉडी की अपनी टिश्यू प्रोटीन यूज हो जाएंगी फॉर द एनर्जी सोर्स, तो क्या होगा, लोगों का तो वजन जाहिर एकदम से लॉस होने लग जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा. इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स का वेट जो है वो लॉस होने लग जाता है, ठीक है जी. तो वेस्टिंग ऑफ मसल इज द कॉमन सिम्टम इन क्रॉनिक डायबिटीज पेशेंट्स, ठीक है, जो जिनमें 10 साल पुरानी डायबिटीज है उनमें ये बड़ा कॉमन सा सिम्टम है वेस्टिंग ऑफ मसल्स, ठीक है. हेंस डायबिटीज नीड मोर प्रोटीन्स अबाउट 2 grams per kg बॉडी वेट. इसका मतलब है आप याद रखो कि डायबिटिक का जो पेशेंट है उसको प्रोटीन हमने ज्यादा देनी है, ठीक है, than the normal patients. The protein allowances should be correspondingly higher for the diabetic children and expectant and nursing mothers, ठीक है. तो अगर डायबिटिक बच्चे हैं या अगर माएँ, ठीक है,
लैक्टेटिंग फीमेल्स यानी कि बच्चों को जो फीड भी करवाती हैं, दूध भी पिलाती हैं माएँ, तो उनमें हमने जो है वो प्रोटीन का कंटेंट फिर हमने ज़्यादा कर देना है, ठीक है। तो इंक्रीज प्रोटीन इनटेक में हेल्प टू इंक्रीज द इंसुलिन प्रोडक्शन। और एक और चीज़ भी है कि अगर आप इंक्रीज प्रोटीन इनटेक देंगे तो आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन भी हो सकता है बढ़ जाए। तो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये है कि जी हमने डायबिटिक पेशेंट्स को प्रोटीन जो है वो ज़्यादा देनी है, ठीक है। अब जी ब्रेक बिल्कुल हम 15 मिनट की करते हैं और उसके बाद जो है ना तुम लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दूंगी थोड़ी देर। अब हम, मेरा ख्याल है कि ब्रेक कर ही लें, ठीक है। तो लुबना के भी क्वेश्चंस का और बाकी भी जिसके क्वेश्चन हम बाद में जवाब देते हैं। तो अभी वी आर गोइंग टुवर्ड्स ए ब्रेक।
So class, finally we're back. Bisan, are you back? Class, are you back? Yes, we are going to restart the lecture. Yes, we're going to restart the lecture. So I will ask all of you to be there to ensure your presence so that we may proceed and we may move forward. Okay, so first of all, moving towards your questions. Is there any effect of diabetic mother on feeding baby? ये क्वेश्चन ये आया है जी मुकद्दस का. मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स का पेट भी तो फूल जाता है, वो क्यों? जी सबसे पहले तो हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस. ठीक है, अच्छा ये है कि जो डायबिटीज मदर है ना, वो बिल्कुल हैप्पीली बिल्कुल फीड करवा सकती है अपने बच्चे को, इसमें तो कोई मसला नहीं है. बट ये है कि डायबिटीज डायबिटिक जो मदर है ना, उसको फिर ये है कि पानी ज़्यादा पीना है, डाइट अपनी अच्छी रखनी है, डाइटरी मैनेजमेंट अच्छी रखनी है. जैसे हमने बात की कि उनको प्रोटीन्स की फिर ज़रूरत ज़्यादा होगी, क्योंकि जाहिर है आप अपनी एक तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, इन द फॉर्म ऑफ द फीड. जो आप फीड दे रहे हो बच्चे को, दैट इज़ द मदर्स एनर्जी. तो उसको ये है कि अपनी डाइट अच्छी रखनी है. तो न्यूट्रिशन में हम मैटरनल न्यूट्रिशन का एक चैप्टर है, ठीक है, जो हमने करना है. ठीक है, तो उसमें हम ये लाजमी पढ़ेंगे कि लैक्टेशन में एनर्जी कितनी होनी चाहिए, प्रेगनेंसी में कितनी होनी चाहिए. तो ये है कि हमारी एनर्जी लेवल उसका माँ का जो है ना, बहुत अच्छा उसको रखना है. क्योंकि डायबिटीज़ में तुम्हें पता है पेशेंट अक्सर हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में चला जाता है, यानी कि उसकी शुगर लो होना शुरू हो जाती है. उसको ये है कि अपनी शुगर लो नहीं करनी है. जब वो फीड करवा रहा है तो जाहिर है उसके साथ साथ उसको मैं करवा रही है तो उसके साथ उसको खाना है. ठीक है ना, तो यानी कि उसको अपनी डाइट अच्छी रखनी है. कैलोरीज उसको ज़्यादा लेनी है. लैक्टेटिंग फीमेल को एक दिन में नॉर्मल जो है ना मदर, उससे उसको तकरीबन 600 किलो कैलोरीज ज़्यादा लेनी है. अगर हम ये कहते हैं कि फीमेल्स को 2000 किलो कैलोरीज चाहिए, तो जो लैक्टेटिंग फीमेल्स है शी विल कंज्यूम 26 कैलोरीज पर डे. ठीक है, तो उसने अपनी कैलोरीज जो है ना वो 550 से 600 किलो कैलोरीज डेली लेनी है. तो ये है. दूसरा जो क्वेश्चन था पेट वगैरह जो फूल जाता है, तो ऐसा पेट तो नहीं फूल जाता. समटाइम्स ये होता है कि जो पेट का जो फूलना है वो तो ज़्यादा है लिवर डिजीजेस में. ठीक है, लेकिन यस कि अगर प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी हो रही है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, ठीक है, प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो फिर ये बात ठीक है कि पेट वगैरह फूल जाता है. लेकिन इन लोगों में ज़्यादा जो है ना वो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, इन लोगों में ज़्यादा ये है कि पाँव वगैरह की स्वेलिंग वगैरह हो जाना. ठीक है, और जो है अगर कोई इन्फेक्शन हो जाना तो वो ज़रा देर से ठीक होना, कोई ज़ख्म हो जाना, कोई काट लग जाना, वो ज़रा देर से डिलेड हो जाता है. वुंड का हीलिंग का जो प्रोसेस है ना, वो डिले हो जाता है इन लोगों में. ठीक है, तो अगर किसी का पेट वगैरह फूलता है तो नेचुरल है कि वो उसमें प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है. ठीक है, साथ में ओडीमा वगैरह हो रहा है, तो वो फिर किसी भी डिजीज़ में हो सकता है. और मोर प्रॉब्ली जाहिर है कि डायबिटिक पेशेंट्स में मैंने बताया जैसे कि बॉडी अपनी प्रोटीन्स का यूज़ कर सकती है फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी. तो फिर उसमें क्या है, अगर अपनी प्रोटीन्स को यूज़ कर रही है फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो जाहिर है फिर ओडीमा वगैरह होने के चांसेस तो ज़्यादा है ना. तो इज इट क्लियर, ताकि हम जो है ना जी वो टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की तरफ मूव कर सकें. ठीक है, इनको हम टाइप 1 टाइप 2 भी कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट भी कहते हैं. ठीक है, और जूनाइल और एडल्ट डायबिटीज भी कहते हैं इसको हम. ठीक है, तो तुम लोगों ने टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा होगा. ठीक है, अच्छा लुबना बतूल, जोड़ों के दर्द का तल्लुक देखो, द थिंग इज कि जो एक बंदा वीक हो जाता है ना, जब जिस किसी को कोई भी डिजीज हो जाए और ऐसी लाइफ टाइम डिजीज हो जाए, तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस जो है ना ज़्यादा हो जाती हैं. वीकनेस वीकनेस हो जाएगी जिस बंदे की इम्यूनिटी, बिकॉज इम्यून सिस्टम अगर आपका सप्रेस हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो फिर आपको हर जगह ही दर्द होनी है. जोड़ों का दर्द हो, कोई भी हो, वो फिर सारी चीज़ें कंटिन्यू हो जाती हैं. बस ये समझ लो बीमार बंदे को ज़्यादा चांसेस हैं और डिजीजेस होने के भी. ठीक है, तो ही और शी इज़ मोर प्रॉन टुवर्ड्स एक्वायरिंग सर्टन अदर डिजीजेस. तो ये सारी चीज़ें जो है ना दर्द से और डायबिटीज़ के साथ, बिकॉज हेल्दी लाइफस्टाइल मैंने तो पहले ही बता दिया है कि हम लोग
जैसे कि आजकल हम आइसोलेटेड हैं, घरों में हैं, क्वारंटाइन हैं, अब कितने हम में से हैं जो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं? इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई एम नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज। पहले तो निकलते थे जी, चलो कॉलेज आना, वॉक हो जानी, वापस जाना, वॉक हो जानी, फिर दोपहर को आना, मतलब आप सबको पता है 2 दफा में आती थी, सुबह भी शाम में भी, और मैं वॉक करके आती थी, तो वो बड़ी अच्छी एक वॉक हो जाती थी। डेली जो है ना कोई 5,000 से 6,000 कदम जो है ना बंदा चल जाता है। लेकिन अब घर पे है, अब बहुत ही नहीं करते कि हम, और स्पेशली जैसे आजकल रमज़ान है, तो इसमें आप ज़ाहिर है ना रोज़ा रख के वॉक हो रही है, ना इफ्तारी के बाद हो रही है, तो लाइफस्टाइल आपका फिर थोड़ा-सा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर डिजीज़ेज़ होने के चांसेस ज़्यादा, वेट गेन होगा, ओबेसिटी होगी तो ज़्यादा, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, ये चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, हमने उसको पकड़ना है। प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है हमारे लाइफस्टाइल से, तो वी हैव टू चेंज इट, ठीक है ना? तो हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो लाइफ भी हेल्दी होगी जी। Types of diabetes mellitus, the one is juvenile diabetes. This include all the diabetes below the age of the 20 years of age. अगर 20 साल से पहले आपको डायबिटीज हो रही है, इसका मतलब है as due to the deficiency of the insulin, जाहिर है ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हो रही है। The subjects are generally undernourished and emaciated. Emaciated का मतलब वही है, malnourished होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत थिन होते हैं, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है, मेल नरिश्ड होते हैं, अंडर नरिश्ड होते हैं, ठीक है। दे रिक्वायर अ हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट एंड इंसुलिन फॉर मेंटेनिंग द ब्लड शुगर लेवल विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। इनको अब क्योंकि अंडर नरिश्ड लोगों में जुवेनाइल डायबिटीज हो रही है, 20 साल से कम, जो कि कमजोर लोग हैं, ठीक है, खुराक जिनकी कम थी, डाइट जिनकी कम थी, इन लोगों को हमने अब ट्रीटमेंट क्या है, इन लोगों को हम हाई कैलोरी डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, ठीक है, ताकि ये अपनी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन कर सकें, ठीक है। और ज़ाहिर है हाई कैलोरी हाई प्रोटीन देनी है तो साथ में इंसुलिन भी देनी है, ठीक है, तो इंसुलिन भी हमने साथ में इन लोगों को देनी है ताकि ये ब्लड शुगर लेवल भी अपना मेंटेन कर सकें। अभी हम जो है ना इस पर भी बात करेंगे कि हमने मेडिसिन में जो डायबिटीज़ की टैबलेट्स होती हैं वो लेनी है कि इंजेक्शन की फॉर्म में इंसुलिन लेनी है, इस पर भी अभी हम बात करते हैं। इससे पहले हम जी आ जाएं एडल्ट डायबिटीज पे जी। अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर ओबीज सब्जेक्ट्स, द ट्रीटमेंट विल कंसिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग डाइट। ज्यादातर जो एडल्ट डायबिटीज है ना, यानी कि 40 इयर्स के बाद वाली जो डायबिटीज है, वो उन लोगों में है जी जो कि ओबीस हैं, ठीक है, जिनमें क्या है कि आपका जो है वेट जिनका ज्यादा है, ठीक है, तो उन लोगों में जो है जी ये एडल्ट डायबिटीज ज्यादा कॉमन है, ठीक है। एंड इसमें क्या है कि जी दी सब्जेक्ट्स रिक्वायर अ मोर इंसुलिन देन द जुवेनाइल डायबिटीज। अब एडल्ट डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं इनको फिर हमने इंसुलिन जो है वो ज़्यादा देंगे, जाहिर है इंसुलिन की जो अमाउंट है वो हम इंक्रीज कर देंगे। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस, द प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रीटमेंट आर एज फॉलो। सबसे पहले तो डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है डायबिटीज में, दूसरा मॉडरेट एक्सरसाइज, तीसरा इंसुलिन या जो हमारी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट जाहिर है डिपेंड कर रही है जितनी डिजीज आपकी स्वेयर है। माइल्ड डायबिटीज commonly occurs in the middle or elderly obese persons with only slight deficiency of insulin, ठीक है जी। ऐसे लोगों में जो कि ओबीस भी हैं, 40 से ज्यादा भी हैं, और लेकिन डायबिटीज माइल्ड है, ठीक है, यानी कि डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर आप अपनी डाइट ही सही कर लो ना, तो आपकी जो है डायबिटीज वो बिल्कुल स्मूथली चलती रहेगी, खास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर तो माइल्ड डायबिटीज है, यानी कि इतनी एडवांस स्टेज पे नहीं गई हुई, इतनी खराब नहीं है सिचुएशन, तो फिर आप डाइट से ही ठीक कर सकते हो। अब स्वेयर डायबिटीज अकर्स व्हेन देयर इज वेरी लिटिल इंसुलिन सेक्रेटेड इन द बॉडी। माइल्ड में इंसुलिन की डेफिशिएंसी थी, लेकिन बड़ी डेफिशिएंसी थी जिसको हमने पूरा कर सकते हैं हम। और अगर इंसुलिन बिल्कुल सिक्रीट ही नहीं हो रही बॉडी में, बहुत ही कम है, तो फिर तो जाहिर है कि ये यंग पीपल में ज़्यादा कॉमन होगी, और आपको इंसुलिन फिर जाहिर है जो है वो इंजेक्शन की तौर पे देनी पड़ेगी, या आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो है पेशेंट को देने पड़ेंगे।
डायबिटीज इज a lifelong disease which can be treated but not cured. पहली बात बताई थी कि लाइफ लॉन्ग डिजीज है जिसको आप ट्रीटमेंट तो कर सकते हो लेकिन इसका क्योर कोई नहीं है। ठीक है जी। द एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू कीप द पेशेंट इन गुड हेल्थ। ट्रीटमेंट का एम क्या होना चाहिए कि पेशेंट की हेल्थ सही रहे। Diet must be rich in all the nutrients. Nutritional value diet ही अच्छी होनी चाहिए। Each individual patient must meet his nutritional needs and each patient must have the diet plan specifically for him. अब इसमें ऐसा नहीं है कि हर बंदे को एक ही डाइट दे दोगे, इसमें जाहिर है कि ट्रीटमेंट प्लान हर बंदे के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है। Many different schemes have been made for the dietary ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज mellitus। ठीक है। डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए काफी डाइट प्लान्स हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल डाइट आर मेड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अब हमने जाहिर है आपकी जो थेराप्यूटिक डाइट है वो क्या है, वो सिंपली यही है ना कि आपने नॉर्मल डाइट में ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देनी है। अब क्या मॉडिफिकेशन करेंगे हम, और बार बार बता रही हूँ कि ये मॉडिफिकेशन सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं होगी, ये स्पेसिफिक होती है हर एक के शुगर लेवल के मुताबिक, हर एज के मुताबिक, हर एक के वेट के मुताबिक। ठीक है। The calorie intake should be adjusted to allow the patients to gain or lose weight as necessary until the desirable weight has been reached। ठीक है। कैलोरी इंटेक अब हमने उसका ऐसा देना है कि जी उसको वजन बढ़े भी ना और कम भी ना हो। ठीक है। और डिजायर्ड उसका जो वेट है ना वो हो जाए। सबसे पहले तो उसकी कैलोरीज पे हम बात करेंगे। हम ज़ाहिर पेशेंट का वजन करेंगे, पेशेंट की हाइट लेंगे, उसके मुताबिक हम कहेंगे कि ये उसका बीएमआई निकालोगे कि इतना उसको हमने देना है, इतनी कैलोरीज हमने इसको देनी है। एंड डाइट वेट शुड बी केप्ट कांस्टेंट। ऐसा हो कि उसका वजन ये ना हो कि 2-4 दिन बाद बिल्कुल ही कम होने लग जाए या बढ़ने लग जाए। ब्लड शुगर शुड बी मेंटेन्ड एट नॉर्मल लेवल बाय द यूज ऑफ इंसुलिन। ज़ाहिर है या इंसुलिन या जो भी वो टैबलेट्स ले रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रहा है, उसकी ब्लड शुगर मेंटेन रहे। ठीक है। और फूड भी आपने उसको ऐसा देना है जो कि इकोनॉमिकल हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत महंगे महंगे फूड, मैं कहूँ कि शुगर का मरीज है मछली खाता जाए हफ्ते में 2 दफा या 3 दफा खा ले, या 4 दिन ही मछली ही खाता रहे, तो वो जाहिर है इकोनॉमिकल हमने देखना है, मीट खा ले। तो हमने देखना है कि इकोनॉमिकल स्टेटस पे भी ना अफेक्ट करे। ऐसा डाइट चार्ट बना के देना जिसमें सारी मिली जुली चीजें। ये नहीं कि हम कॉस्टली फूड आइटम्स, ठीक है जी, बादाम खाते रहो, महंगी महंगी चीजें डाल दें। ठीक है। उसको तो उसको साथ में सब्जियां, हर आजकल सब्जियां भी एक ही रेट है, लेकिन ये है कि हमने उसको मिक्स वैरायटी, वेजिटेबल्स भी ले, वो फ्रूट भी ले, वो मीट भी ले, वो फिश भी ले, तो एक मल्टी वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स उसमें ऐड करने हैं। The total intake of the calorie is important for the diabetic patient. It is best to keep a diabetic on a well balanced diet. ठीक है। ज़्यादा वेल बैलेंस डाइट हम उसको देंगे तो फिर कोई भी डिजीज है उसमें आपने बैलेंस डाइट ही पेशेंट को देनी है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज में ये है कि उसका वजन ना बढ़े। ठीक है। वजन बढ़ेगा तो शुगर जो है ना और खराब होगी। ठीक है। और ये जो पैरों पे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है ना, दैट इज बिकॉज के वेट ज्यादा होता है। वेट ज्यादा होगा तो सारा प्रेशर आपके पाँव बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पाँव सूज जाएंगे। Of the total calories required, 20 to 25% should be from the proteins। वो पहले भी हमने बात की थी कि प्रोटीन्स आपने 20 से 25% देनी है, फैट्स आपने 40% देने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपने 40% पेशेंट को देने हैं। ठीक है। तो जी कैलोरी जो है ना इनटेक वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा पेशेंट की एज पे, उसके हाइट पे। ठीक है। तो ये सारी चेंज करेगी। और नॉर्मली ये होता है कि जितना भी पेशेंट का वजन है ना उससे आप 5% कम ही रखो। देखो आइडियल मैं कहती हूँ आपका वजन जो है, किसी की हाइट 5'5" है तो उसका वेट 60 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ 60 भी नहीं, वो 57 रख ले तो बहुत ही अच्छा है। यानी कि आइडियल से भी थोड़ा सा हम कम रख लें, ताकि कभी कभी अगर दिल करता भी है कुछ खाने को, खाबों शाबों को, तो बंदा जो है वो इजीली खा सके कि वेट कौन सा, अभी तो मेरा 1-2 किलो है मेरे पास जिसको मैं अभी फिल कर सकते हैं हम। तो इसलिए हमें आइडियल ये होता है कि आप अपना जो डिजायरेबल है ना उससे भी कम रखें। Calorie requirements should be 5% less than the actual requirement for the patient height and ideal body weight। वही बात जो मैंने पहले की थी कि आइडियली ये है कि कैलोरीज भी जितनी चाहिए ना उससे 5% कम ही रखें हम। ठीक है।
तो इसी तरह से जो बॉडी वेट भी उसका होगा वो उसी तरह से होगा कि जितना होना चाहिए उससे 5-6% कम ही हो। इसमें अब यही एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि एडल्ट मेल जो है जिसकी हाइट 5'4" है और बॉडी वेट उसका 53 है, एज उसकी 50 ईयर्स है, ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि उसका जो है ना बॉडी वेट वो कम ही रहे, ठीक है ना। 53 55 अगर उसका है तो हम चाहेंगे कि 52 हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और अगर वो जो है उसकी स्वेयर टाइप की डायबिटीज है तो फिर हम कहेंगे ये वेट और भी कम हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हमने आइडियल बॉडी वेट फॉर अ सब्जेक्ट ऑफ 5'4" हाइट विल बी 55। अब जिसका कद 5'4" है और उम्र 50 साल है उसके लिए आइडियल वजन तो है कि 55 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि आइडियल 55 होना चाहिए, तो आप 52 रखो उसको, ठीक है। 52 हम उसको रखेंगे तो वो ज्यादा फायदा है, ठीक है, ताकि उसकी कैलोरी इनटेक्स जो है ना, बिकॉज पेशेंट है और पेशेंट आपको पता है कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी उसमें नहीं होगी, एज भी 50 ईयर्स है, तो इट शुड बी 5% लो देन द आइडियल वेट। इसी तरह से जो कैलोरीज हैं, ठीक है, अब इफ 2400 किलो कैलोरीज आर रिक्वायर्ड तो वी व्हाट वी डू, वी विल डू के कैलोरीज 2280 हो जाए, ठीक है। तो 5% रिडक्शन इन द वेज एंड द 5% रिडक्शन इन द calorie is highly desirable basically. So the weight reduction and the calorie reduction both are highly desirable for the person who is suffering for the diabetes mellitus, ठीक है। तो आइडली जो है these are the things कि आइडली जो है ना द वेट शुड बी लो, ठीक है, कैलोरीज शुड बी लो एंड वेट शुड बी लो। तो ये दीज आर द थिंग्स बेसिकली व्हिच हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन द पैराग्राफ के 3 मेल्स हैं तो उनमें ये है कि आइडली एक्चुअल जो वेट है दैट शुड बी 55, बट इफ इट कैन बी 52 इट विल बी गुड, एंड इफ कैन बी 48 इवन तो इट कैन ऑल्सो बी गुड, ठीक है। तो हम इसको कम ही रखें तो अच्छा है। Again, the things which I think have been explained earlier, they are repeating here again, that the proportion of the calories derived from carbohydrates, fats, they are given, and we have done with it also. Juvenile diabetes, adult diabetes, I think we have done it also in the previous pages. This is repeating only it here again and again. So carbohydrate metabolism was not given, so we will do it. There is disturbance of the carbohydrate metabolism in diabetes because there is hyperglycemia and there is glycosuria. So in a diabetic, drastic restriction of the carbohydrates should not be advised. So हम ये एडवाइस नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में लेने ही नहीं जी, ऐसी कोई कहानी नहीं है। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स में बार बार बता रही हूँ सिर्फ शुगर्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो कंप्राइज ऑफ फाइबर्स विच आर वेरी गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट। बिकॉज फाइबर से आपका पेट भी भर जाता है, फाइबर से वेट भी कम रहता है, फाइबर से शुगर भी नहीं बढ़ती, तो फाइबर्स का तो बड़ा रोल है शुगर मेंटेन करने में। तो इन दिस वे इट इज एडवाइजेबल टू टेक द कार्बोहाइड्रेट्स, बट इट इज एडवाइजेबल टू टेक द पॉलीसेकेराइड्स, एंड प्लस हमने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बार बार बताती हूँ प्लीज, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हमने नहीं लेने, हमने होल सीरियल्स लेने हैं, ठीक है, छिलकों समेत दालें जो होती हैं वो खाया करो, दे आर गुड, ठीक है। और इसी तरह से आटा जैसे मैं बात करती थी, वो जैसे चक्की वगैरह का होता है, ये जो फ्लोर मिल्स का रिफाइंड वाइट वाला वो नहीं हमने लेना, मैदा नहीं लेना, तो हमने रिफाइंड चीज़ें नहीं, हमने प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें हमने लेनी है, ठीक है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ना लेंगे तो क्या होगा, बॉडी फैट्स पे शिफ्ट हो जाएगी और अगेन कीटोन बॉडीज बनेंगी, वही वाली कहानी दोबारा। इस वजह से हमने जी कार्बोहाइड्रेट्स को लाजमी डाइट में लेना है, और ये इनटेक कार्ब्स का at least 40% is highly desirable, ठीक है, except in the case of obese diabetes। तो हमने जो है जी 40% जो है वो लाजमी लेना है। जी बिल्कुल दीना, इतना वेट तो बिल्कुल होता ही है, ठीक है ना, 50 ईयर्स में बिल्कुल 50 kg या जो है 55 kg। आप सही कह रहे हो, लेकिन हम जब पढ़ते हैं ना तो हम सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात करते, हम फिर पूरी दुनिया की भी बात करते हैं, ठीक है। तो 50 साल की उम्र में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका वजन जो है वो 70 किलो भी है, 80 किलो भी है, ठीक है, कद 5'4" है और वजन ज्यादा है। तो हम सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, हम सारी दुनिया की बात कर रहे हैं कि वो ओबीस होते हैं तो उनमें बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इवन हमारा कद 5 फुट है और वजन 70 किलो है, इवन आई एम ओवरवेट, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू
कैन बी ओवरवेट, ठीक है, तुम में से भी बहुत से लोग हैं जो ओवरवेट होंगे, तो हमने इस वजन को कम करना है, कम करेंगे, आइडियली कम करेंगे तो बीमारियों से बच सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप कहो कि जी मैं खाता भी रहूं और एक्सरसाइज भी ना करूं, मेरा वेट भी मेंटेन रहे और मुझे बीमारी भी कोई ना आए। तो मेरा ख्याल है कि ओबेसिटी कैन लीड टुवर्ड्स द मेनी डिजीजेस, हमने चैप्टर पढ़ा भी है, तो ओबेसिटी से हमने बचना है। प्रोटीन्स का जी हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन परसेंट हमें प्रोटीन चाहिए, ठीक है। फैट्स भी हमने ये पहले कर चुके हैं, मेरे ख्याल में दोबारा वही चीज़ें रिपीट हो रही। नो जी, इम्पॉर्टेंट थिंग जो जी हमारी है इसमें अब फूड एक्सचेंज लिस्ट, इसका मतलब क्या है, इसकी तरफ जरा हम आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी वी हैव डन इन द प्रीवियस पेजेस, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। A moderately accurate method for prescribing the diet has been drawn up, which classifies and standardizes the values of specific food. This makes planning of the diet more simple for patients who are restricted to a low calorie intake. इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्रुप्स हैं, फूड ग्रुप्स हैं। अगर एक ग्रुप में आपको चीज़ नहीं पसंद तो आप उसकी फूड एक्सचेंज लिस्ट होती है, आप वही चीज़ दूसरे में ले लो। फॉर एग्जांपल कोई गोश्त नहीं खाता और प्रोटीन्स चाहिए तो दालों से फ्री कर लो, ठीक है ना। आप कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी नहीं खा रहे तो सब्जियों में भी है, उससे ले लो, ठीक है। तो वी हैव द फूड एक्सचेंज लिस्ट, ठीक है। तो अब अगर आपको दूध नहीं पसंद तो कैल्शियम के लिए वी हैव योगर्ट, दही खा लो। तो इस तरह की हमारे पास ना फूड एक्सचेंज लिस्ट होती है कि जो आपके ग्रुप्स हैं, वी हैव द सेवरल ग्रुप्स, के एक ग्रुप में कोई चीज़ नहीं पसंद तो दूसरे ग्रुप से ले लो, दूसरे में नहीं पसंद तो तीसरे से ले लो, अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद हैं। तो ये पेशेंट के डाइट को सिंपल और ईजीएस्ट बना सकते हैं कि वो अपना कैलोरी इनटेक कैसे मेंटेन करे, ठीक है जी। There are light food groups. The measurements are given in the grams or milligrams wherever possible, and in concern household measures such as a cup of a size of the fruit, ठीक है। तो ग्राम्स और मिलीग्राम्स की बजाय जो हम घरों में कप या कोई भी फ्रूट साइज, पोर्शन साइज लेते हैं, उससे भी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, जो बेसिकली पॉपुलर भी हैं और जिनसे हम अपनी मर्जी के इंतखाब कर सकते हो कि कितना आपने साइज लेना है। पोर्शन ऑफ द फूड कैन बी सिलेक्टेड, और जो है जी ग्रुप में से कोई भी आप जो है ना फूड आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। देयर आर मैनी एक्सचेंजेबल फूड्स ऑफ अबाउट द सेम कंपोजिशन विद इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में सेम कंपोजिशन वाले ग्रुप्स हैं। देखो जैसे मैंने बताया है कि गोश्त में भी प्रोटीन है, ठीक है, मछली में भी प्रोटीन है, दाल में भी प्रोटीन है, बीन्स और लेग्यूम्स में भी प्रोटीन है, ठीक है, चिकन में भी प्रोटीन है। तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, इसमें से तुम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो चॉइस कर सकते हो। तो फूड एक्सचेंज इसका मतलब ये है कि वी हैव द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स विद द सेम कंपोजिशन, ठीक है। सेम कंपोजिशन में हमारे पास काफी ग्रुप्स आ जाते हैं, तो एक ग्रुप में सिलेक्ट हम कर सकते हैं। फूड्स फ्रॉम वन ग्रुप कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर द फूड्स फ्रॉम द अनदर ग्रुप। दीज एक्सचेंज ग्रुप्स हेल्प द डायबिटिक पेशेंट प्लान हिज डाइट सो एज टू प्रोवाइड अ वैरायटी। अच्छा, ये है कि एक ग्रुप में से अगर चीज़ नहीं पसंद तो दूसरे ग्रुप में से नहीं ले सकते, बल्कि एक ही ग्रुप की जो चीज़ें हैं, यानी कि प्रोटीन वाली जो चीज़ें हैं, उन्हीं में से हमारे पास काफ़ी आइटम्स हैं जो कि हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम आप लो कैलोरी फूड भी ले सकते हो, ठीक है, कि जिसमें आप ऐसी चीजें सिलेक्ट कर लो जिनमें कैलोरी कम हो, ठीक है ना। खाना खाना है ना, तो आप देखो जैसे हमने सैलेड सेलेक्ट कर लिए कार्बोहाइड्रेट्स में से। अगर तुम रोटी खाते हो तो रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है, अगर सलाद खाते हो सलाद में भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये है कि सलाद तुम लोगों को एनर्जी कम देगा, सलाद वजन नहीं बढ़ने देगा, सलाद कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगा, सलाद वेट को नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। तो हमने इसलिए वो चीज़ चूज कर ली अपने हिसाब से, ठीक है, अपनी कैलोरी इनटेक के लिहाज से कि जो हमें फायदा दे। इसको हम कह रहे हैं फूड एक्सचेंज लिस्ट। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द एजुकेशन ऑफ द पेशेंट, जो तुम लोगों के नर्सिंग से बहुत ज्यादा रिलेट कर रही है। दिस इज द एजुकेशन ऑफ द पेशेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क विच हैव बीन असाइंड टू द नर्सेज, के पेशेंट की और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स की एजुकेशन कैसे करनी है। कि जैसे आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हो पेशेंट को, तो आपने क्या गाइडेंस उसे देनी है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द
डायबिटीज मेलाइटिस, क्योंकि हमारे पास हर हॉस्पिटल में इस तरह से न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है कि जो कि बेड टू बेड आके जब पेशेंट घर जाने लगता है तो जी अस्पताल वालों ने, स्पेशली सरकारी वालों ने ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट नहीं रखी हुई जो हर पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। जी अच्छा जी अब आपको छुट्टी दे दी गई, अब घर जाके ये आपका डाइट चार्ट है, ये आपने खाना है। ऐसा बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अभी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये नर्सिंग पे अब तुम लोग पे आता है कि हमने क्या उसको गाइडेंस देनी है कि एक जो फर्स्ट टाइम जो मरीज बना है जी शुगर का, डायबिटीज का, तो क्या आप उसको प्रिवेंटिव मेजर्स बताओगे, क्या आप उसको डाइटरी गाइडलाइंस बताओगे, ठीक है। तो एजुकेशन ऑफ द पेशेंट, every diabetic person should know how to manage his diet with the exchange alternatives and variations to prevent monotony and to enable him to lead as normal as life as possible। हर डायबिटिक पेशेंट को कैसे डाइटरी मैनेजमेंट बताओगे कि एक ही तरह की चीजें भी ना खाए, यानी कि उसको डिफरेंट फूड आइटम्स भी अवेलेबल हो और अपनी नॉर्मल लाइफ भी वो स्पेंड कर सके, ठीक है। अलीजा, it will be necessary to weigh the foods according to the doctor orders and show the patient how to measure the similar amounts with equipment which he has at home। देखो डॉक्टर ने तो आपको कह दिया 10 ग्राम खाना है, अब ले मैन के लिए बड़ा मुश्किल है 50 ग्राम प्रोटीन मैयर करे, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मैयर करे, ठीक है। एक आम बंदा, और बहुत से अगर पढ़े लिखे भी नहीं मरीज, जरूरी नहीं है आपके पास एजुकेटेड आए, ठीक है। ले मैन के लिए ग्राम्स मिलीग्राम्स जो है वो मिटाना, वो मेंटेन करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमने उसको मेजरमेंट्स देनी है जो उसके घर में चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि उसके घर में जो चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि आप हाफ कप कह सकते हो, हाफ प्याली कह सकते हो, ठीक है। तो घर के जो हाउस होल्ड मेजरमेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हम उनको कहेंगे, तो उनसे हम जो है वो उनको बता सकते हैं गाइडलाइंस, ये दोनों का काम है, ठीक है। Is there any relation between diabetes and diabetes insipidus? जी इस पे बात करते हैं, अभी पहले हम ये खत्म कर लें, रिलेशन वैसे कोई नहीं है इनमें। अब जी पेशेंट विल नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ द फूड एज वेल एज द चॉइस ऑफ द फूड। जाहिर है पेशेंट्स के लिए इतना देखा गया है, जैसे पाकिस्तान में भी इतना ज़रूरी नहीं होता कि आपकी जो अमाउंट है फूड कितना चाहिए वो कोई इम्पोर्टेंट है, या जो है जी उसकी जो है चॉइस ऑफ द फूड जो है, ठीक है। सो दिस इज नॉट नेसेसरली मैंडेटरी फॉर द पेशेंट, ठीक है। उस उसके लिए ये जो है ना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने उसको गाइड करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये आप जो गाइडेंस है ना वो आपकी है, ठीक है, कि नर्सेज की है कि वो कैसे एम्फसाइज करेंगी क्या पेशेंट को खाना है, और स्पेशली इंसुलिन कब लेनी है, ठीक है। तो हमने पेशेंट को गाइड करना है कि आपने खाना खाने से हमेशा आधा घंटा पहले इंसुलिन लेनी है, हमेशा आधा घंटा पहले आपने इंसुलिन लेनी है पेशेंट ने, ठीक है। तो हमने ये उसको रिकमेंड करना है कि इंसुलिन का इंजेक्शन जो है आपने लेना है, और सबसे पहले तो ये आपने गाइड करना है कि प्लीज डू नॉट गो फॉर द इंसुलिन टैबलेट्स, नॉट गो फॉर द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स जो है ना वो नीडल के खौफ से बड़ा ही घबराते हैं कि जी हमें सुई लगेगी, डेली लगेगी, हर खाने से पहले 3 दफ़ा हम एक इंजेक्शन लें, ठीक है, नीडल लगवाएं। तो नीडल का जो फेयर है ना वो बहुत ज़्यादा है पेशेंट्स को, ठीक है। तो हमने आपने बीइंग अ नर्स यू हैव टू गाइड द पेशेंट्स कि जी आपने सबसे पहले तो प्लीज़ कभी मत समझो कि आखिरी हल है इंसुलिन, हमेशा ये सोचो कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो डायबिटिक मेलाइटिस का है दैट इज इंसुलिन, ठीक है। द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिस मेलाइटिस इज इंसुलिन, नॉट द लास्ट। ये पहले तो उनके दिमाग में बात तुम लोगों ने डालनी है, गाइडेंस उनको देनी है कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इंसुलिन है। अक्सर लोग क्या करते हैं जब 5-10 साल हो जाते हैं शुगर नहीं कंट्रोल हो रही तो फिर जी हम इंसुलिन लेंगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग, कि आपने शुरू ही इंसुलिन से करो तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम बेटर वे में शुगर को कंट्रोल कर सकें, और प्लस जो है जी बेटर वे में हम अपनी लाइफ हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। अगर आप आर्टिफिशियली जो बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही आर्टिफिशियली ले लोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपके पास खाने की चॉइसेस बड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। खाना तुम लोग अच्छा आराम से खा सकोगे बिकॉज इंसुलिन इज देयर टू कम्बैट, कि अगर ज़्यादा कम थोड़ा खा भी लिया है तो इंसुलिन वहाँ पे होगी जो उसको अकोमोडेट कर सके। तो जो गाइडेंस है जो पेशेंट की काउंसलिंग है दैट इज द मेजर वर्क डन बाय यू गाइस, कि सबसे पहले तो हमने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं समझना, हमने इंसुलिन को समझना है। फिर इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह कैसे है, ज़ाहिर आधा घंटा पहले आपने लेनी है। फिर आपको सिम्टम्स बताने हैं क्या चीज़ हो रही होगी, कि पसीने आ रहे होंगे कोई,
ठीक है, तो आपको जी हाइपोग्लाइसेमिक आप मान रहे हो, ठीक है, तो आपकी शुगर लो होने के सिम्टम्स क्या हैं, आपको अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसका अटैक कैसे समझ आएगी, ठीक है, कि क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोगों में जब शुगर लो होती है तो उनको पसीने वगैरह बहुत आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल बॉडी में जान हो गई है, जान निकल रही है बॉडी से, ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम्स, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो रही है तो ठीक है जी, आपकी लेग्स में जो पेन है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है, तो ये हमने सिम्टम्स उनको गाइड करने हैं कि इन चीज़ों से आपको पता चलेगा शुगर लो कब हो रही है, शुगर ज़्यादा कब हो रही है। तो एजुकेशन ऑफ द पेशेंट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट। नाउ द डायबिटिक चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, जाहिर है जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, उनकी केयर है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस उनमें एक चीज़ मैंने पहले भी कहा था कि इन लोगों में जो है प्रोटीन इनटेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इन लोगों में आपने protein intake should be high, ठीक है, because for the growth of the body of the children, protein is the major building block, ठीक है, major biomolecule which act as the which play a role in the growth and the maintenance of the body। इस वजह से हमने प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा देनी है बच्चों में, और प्लस प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। प्रेगनेंसी में भी जाहिर है मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द फीटस इन हर बॉडी, बॉडी में एक और एम्ब्रियो का, फीटस का भी वो जो है ख्याल रख रही है, उसकी भी डाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वजह से हमने, और ग्रो कर रही है एक और ज़िंदगी बॉडी में, तो इस वजह से हमने प्रोटीन्स प्रेग्नेंट फीमेल्स को और प्लस लैक्टेटिंग फीमेल्स को हमने ज़्यादा देंगे हम एज कम्पेयर टू द नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। तो जी बच्चों में और प्रेग्नेंट मदर्स में जो है प्रोटीन इनटेक जो है ना वो ज़्यादा होगी, और प्लस जाहिर है आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स उसी रेशियो से दोगे, लेकिन प्रोटीन इनटेक शुड बी हाई, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसका बड़ा रोल है। Pregnant women also need to be careful, otherwise the large amounts of carbohydrates in the body may cause the development of an abnormally large baby, making the delivery difficult। अब जिन औरतों को प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है, एक तो होता है कि जिनको पहले ही हो, ठीक है, और एक होती है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, डायबिटीज विच ओनली लास्ट ड्यूरिंग द 9 months ऑफ द प्रेगनेंसी एंड इट इज क्योर्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। सिर्फ ये कुछ माओं को पहले से अगर जो डायबिटिक हैं वो तो अलहदा बात है, लेकिन कुछ को प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है डायबिटीज़, और वो खुद ब खुद सही हो जाती है, जिसकी किसी मेडिकेशन की एज सच जो है ज़रूरत नहीं होती, और एज सून एज द बेबी इज़ डिलीवर्ड जो है वो फीमेल जो है प्रेग्नेंट फीमेल, उसका वो डायबिटीज़ मेलाइटस भी ठीक हो जाता है, ठीक है, तो वो स्पेशली उस टाइम पीरियड के लिए होती है। और जो कि आप दवाइयों की बजाय थोड़ा सा डाइट से ही उसको मेंटेन कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर इफ़ देयर इज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ ड्यूरिंग द गैस्ट्रेशनल पीरियड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो फिर क्या होगा, द साइज ऑफ बेबी विल बिकम इन लार्ज। ये साइड इफ़ेक्ट है प्रेग्नेंट डायबिटीज़ मदर को, कि बच्चे का जो साइज़ है, बच्चे का जो वेट है, बच्चे की जो बॉडी साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो उसका ज़ाहिर है अगर उसका वेट बहुत हेल्दी है, बहुत बड़ा हो गया बच्चा, या मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि जैसे हमारा आइडियल 7-8 पाउंड्स है, लेकिन अगर 10 पाउंड्स का बेबी है तो ज़ाहिर है उसकी डिलीवरी मुश्किल होगी, और स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होगी, और मदर विल गो टूवर्ड्स द सी सेक्शन, ठीक है, उसे फिर ऑपरेशन और सी सेक्शन और सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायबिटिक जो मदर्स हैं उनका वेट ज़्यादा होने की उनमें यह होता है कि बच्चे का वेट बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, और जो हाइपरटेंसिव मदर्स हैं उनमें बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो जी ये है साइड इफ़ेक्ट डायबिटीज़ जो है प्रेग्नेंट मदर्स का। जी तो हम सबके सवालों के जवाब एक दफ़ा ख़त्म करके फिर हम आते हैं, सारी शुगर लो हो तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ज़रा आप जूसेस वगैरह पेशेंट को दो, खजूरें दो, आप ऐसी चीज़ें दो विच आर वेरी रिच इन ग्लूकोज। उसमें आप पानी में सिर्फ चीनी मिला के भी एक, या शक्कर का शरबत मिला के भी आप पेशेंट को दे सकते हो, या घर में कोई जूस वगैरह पड़ा है फ़ौरन से वो दे सकते हो, तो उससे ठीक हो जाएगी। तो जी ये कुछ हमारे स्पेशल ग्रुप्स हैं जिनमें डायबिटीज़ का हमने बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख्याल रखना है। इसके बाद है हाइपर इंसुलिनिज्म। In hyperinsulinism, the production of insulin in the ile's tissue exceeds normal and cause the storage of the glucose as glycogen at the
expense of the blood sugar which therefore tends to be low. इसका मतलब क्या बताती हूँ आप, हाइपर इंसुलिनिज्म में ये है कि बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है कि नॉर्मल से भी ज़्यादा होने लग गई है, और आपका जो है ना जी वो ग्लूकोज जैसे ही बॉडी में आप किसी भी चीज़ खा रहे हो ना तो फौरन से वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है। पहले तो इंसुलिन का काम ये है ना कि जो उसने एक्सेसिव ग्लूकोज को स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, बट अगर आपकी एक्सेसिव, ये एक बीमारी है ना हाइपर इंसुलिनिज्म, ये आपकी एबनॉर्मल स्टेट है, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो एक्सेसिव बन रही है, ओवर प्रोडक्शन उसकी हो रही है, तो व्हाट विल हैपन कि आपकी बॉडी में तो फिर ग्लूकोज जो है वो यूज ही नहीं होगा, सेल्स उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना वो करवा ही नहीं सकेंगे कि फौरन से ही जो है ना वो जी ग्लाइकोजन में स्टोर होने लग गई है, फौरन से ही वो जी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गई है। तो आपका क्या होगा, फिर आपकी ब्लड शुगर लो होने लग जाएगी। इट इज ऑफ लिटिल वैल्यू टू गिव द एडिशनल कार्बोहाइड्रेट in the diet because it is quickly stored as glycogen and the patient becomes hypoglycemic again. The retention of the sugar in the body may also lead towards the obesity, and the general plan of the dietary treatment is as follows. अब जी ऐसे पेशेंट्स जिनमें इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन हो रही है, इफ देयर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन इन द बॉडी, then the glucose will no longer remain available for the cells for the source of energy. ग्लूकोज आपकी बॉडी में अवेलेबल नहीं होगा कि सेल्स उसको एनर्जी के सोर्स के लिए यूज कर सकें। जैसे ही आप कोई चीज कार्बोहाइड्रेट वाली खाओगे जिसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज तो बनेगा, लेकिन ये है कि वो फौरन से ग्लाइकोजन की फॉर्म होता जाएगा। अब अगर बॉडी में ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा, ग्लूकोज बहुत स्टोर होता जा रहा है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो जाहिर है आपका वजन भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, बॉडी को एनर्जी भी नहीं मिल रही और वजन भी बढ़ता जा रहा है और शुगर लो होती जा रही है, क्योंकि ग्लूकोज आपके ब्लड में नहीं ना जा रहा, ग्लूकोज तो आपके फौरन इंसुलिन ज्यादा बनती जा रही है और ग्लूकोज को फौरन ग्लाइकोजन की फॉर्म में करती जा रही है। आपका सारा ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा तो आपका बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जो ब्लड का प्लाज्मा का ग्लूकोज है, वो क्या होगा, वो लो होगा। तो पेशेंट आपका हाइपोग्लाइसेमिक बन जाएगा, पेशेंट आपका हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में चला जाएगा। एक तो हाइपोग्लाइसेमिक, दूसरा ओबीस बन जाएगा, तीसरा ग्लाइकोजन के स्टोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप और कार्बोहाइड्रेट देते जाओगे तो कोई फायदा होगा? इसमें तो पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें तो पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा, इसमें तो ये होगा कि आप जितना दे रहे हो उसको कार्बोहाइड्रेट, वो सारा फौरन से तो बन रहा है आपका ग्लूकोज, ठीक है, फौरन से आपका ग्लाइकोजन बन रहा है, तो इसमें तो पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा। तो हाँ जी, हम सिम्टम्स की तरफ भी अभी आते हैं, तुम लोग के क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट वी फिनिश इट, देन वी विल मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। द रिटेंशन ऑफ द शुगर ऑल्सो लीड टू ओबेसिटी। अब इसमें डाइट थेरेपी क्या होगा कि करना क्या है, हमने प्लान क्या है, तो प्लान इज टू रिस्ट्रिक्ट द टोटल कैलोरीज टू द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट और लिटिल लेस इफ ही इज ओबीस। अगर पर्सन पहले से ओबीस है तो प्लान हमारा ये होगा कि हमने टोटल कैलोरीज को ही कम कर देना है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देने का फायदा ही नहीं है, वो तो क्या है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उसके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते जा रहे हैं, तो इट विल बी ऑफ लिटिल वैल्यू टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स टू द पेशेंट। अगर हम पेशेंट को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। फैट्स भी हमने लिमिटेड देने हैं, ठीक है, पहले से अगर वो 20 है या ग्लाइकोजन स्टोर्स की वजह से ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, तो हमने पेशेंट को फैट्स भी कम देने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम देने हैं। अब कौन सी चीज हम देंगे? प्रोटीन्स। सो वी विल गिव द हाई प्रोटीन डाइट टू द पेशेंट, ठीक है। तो हर 2 घंटे के बाद आप पेशेंट को प्रोटीन डाइट देते जाएं, ताकि जो है ना प्रोटीन्स भी, हमें पता है कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन स्लोली कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होगी और पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहता जाएगा। तो हाइपर इंसुलिनिज्म जो डिजीज है उसमें हमें हाई कार्बोहाइड्रेट देने का कोई फायदा नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज इज टू गिव द प्रोटीन डाइट, ठीक है, after every 2 hours, so that slowly it is converting into the carbohydrate and it is going to maintain the blood sugar level of the patient. तो कार्बोहाइड्रेट्स हम बहुत कम से देंगे, 150 ग्राम, प्रोटीन्स 130 ग्राम और फैट सिर्फ 42 ग्राम।
तो approximately the total calories which have been given to the patient of hyperinsulinism is 1500 kilocalories. So total हमने जो calories देनी है ना patient को वो हमने देनी है जी 1500 kilocalories patient को. So जी this was about the diet therapy in liver diseases. अब moving towards your सवाल जवाब your questions. रोशना कंवल, देखो हाई और ब्लड शुगर लेवल के जो है ना सिम्टम्स मैंने पहले बताया कि जब लो हो रही होती है ना पेशेंट को पसीने वगैरह बहुत आते हैं, पेशेंट की बॉडी से जान निकल रही होती है, उसे बात नहीं हो रही होती, ठीक है, और वो अल्टीमेटली फेंट हो जाता है, और ब्लड शुगर अगर इतनी ज़्यादा लो हो जाए तो पेशेंट कोमा की सिचुएशन में भी चला जाता है. समझ आ गई. लो ब्लड शुगर के जो सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आना, टांगों से बॉडी से जान निकलना, बात ना होना, पेशेंट से ज़बान लड़खड़ाना, फेंट हो जाना और अल्टीमेटली कोमा की सिचुएशन में चले जाना. ये तो सारे सिम्टम्स हैं आपके लो के. अब हाई में भी क्या होता है कि समटाइम्स, एक तो मैंने बताया है कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, होंठ खुश्क हो रहे होते हैं, सूख रहे होते हैं, ठीक है, और इसी में भी लेग्स में पेन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है. लेकिन हाई में भी क्या है, हाई में ज़्यादा ये होता है कि हाई से भी पेशेंट जो है वो कोमा की सिचुएशन में जा सकता है, ठीक है, कि अगर शुगर इतनी ज़्यादा हो गई है तो उसमें भी जा सकता है कोमा की सिचुएशन में. लेकिन ये है कि हाई जो है ना आपके किसी ना किसी ऑर्गन पे एक्ट कर जाती है. आई मस्ट से कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है ना दैट इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया. शुगर लेवल लो होना जो है दैट इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है दैट एक्ट्स ऑन सर्टेन ऑर्गन्स इन योर बॉडी. शुगर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना तो वो आपके किडनीज पे असर कर सकती है, आपकी आंखों में असर कर सकती है, ठीक है, आंखों को इफेक्ट कर देगी, गुर्दों को इफेक्ट कर देगी, ठीक है, तो फौरन से डेथ होने के चांसेस उससे कम है. बट लो शुगर होने से, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया से पेशेंट फेंट हो सकता है, कोमा में जा सकता है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी की शुगर नील हो गई है तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली द पेशेंट विल लीड टुवर्ड्स डेथ, ठीक है. तो इस वजह से जो हाइपोग्लाइसीमिया है ना दैट इज मोर डेंजरस. तो ऐसे लोगों को आपने गाइड करना है कि पेशेंट्स को अपने पास, अपनी पॉकेट्स में, अपने पर्स में, अपने बैग्स में खजूरें, कोई जूस, कोई इस तरह की मीठी चीज़ें ज़रूर रखनी है कि अगर कभी भी शुगर लो हो रही है तो आप पेशेंट फ़ौरन से जो है ना वो उसको मेंटेन करने काबिल हो. कहीं बाहर है, घर में नहीं है, शुगर लो हो गई है, तो अपने साथ, औरत है मर्द है, अपने साथ अपने बैग में, अपने पर्स में, अपनी पॉकेट्स में ऐसी चीज़ें रखें, ठीक है जी. इसके अलावा जी देखो फेंट होने के और भी अपने रीजंस हैं, पर इफ ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज तो आपने खाना पीना नहीं खाया हुआ, वैसे ही आप डायबिटीज तो नहीं है, बट जैसे रोजा है कि आप बगैर सैरी के भी रख रहे हो, या वैसे दिन में अगर गर्मी बहुत ज्यादा है आप नहीं खा रहे हो, ठीक है, तो आप फेंट हो सकते हो. फेंट होने के लिए जरूरी नहीं है कि डायबिटीज का होना, ठीक है, तो फेंट होने के लिए और भी रीजंस हैं, ठीक है जी. बिल्कुल, कोई स्ट्रेस है उस वजह से भी हो सकता है, सारी चीजें हैं इफेक्ट करती हैं, ये चीजें वेरी करेंगी पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है जी. अब ये एक सवाल था कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस. तो मैं बता दूं कि डायबिटीज इंसिपिडस भी एक हार्मोन की डेफिशिएंसी से हो रहा है और डायबिटीज मेलाइटस भी एक हार्मोन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, लेकिन दोनों हार्मोन डिफरेंट हैं. डायबिटीज मेलाइटस को जो चीज कॉज कर रही है दैट इज इंसुलिन, और डायबिटीज इंसिपिडस को जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH. हमने हार्मोन्स के चैप्टर्स में इसको कवर भी करना है, ठीक है, तो ADH इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है. तो इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बेसिकली इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ADH का फंक्शन ये है कि इसने हमारी बॉडी में वाटर का लेवल कंजर्व करना है, हमें वाटर लॉस से बचाना है. देखो गर्मियों में जब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, अगर तुम लोग 2-3 गिलास भी पी रहे हो तो बॉडी का तो वाटर लेवल 60-65 मेंटेन है ना, तो कौन सी चीज इसको मेंटेन कर रही है, तो बेसिकली द हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर लेवल ऑफ द बॉडी इज द ADH हार्मोन. एंड इफ देयर इज जेनेटिकली अगर डेफिशिएंसी है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, देन व्हाट विल हैपन, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ADH तो हमारी बॉडी का जो है ना वाटर वो कंजर्व नहीं होगा और जो यूरिन आउटपुट है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, यूरिन की फॉर्म में पानी का लॉस होगा हमारी बॉडी से. और दिस डिजीज इज ऑल्सो वेरी डेंजरस बिकॉज इसमें जो वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन है that can up to 16 liters per day, and this is a very very big amount, 16 liters per day. अगर किसी की बॉडी से 16 लीटर पानी डेली अगर एक्सक्रीट होता है तो दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग
एंड इट कैन इवन लीड टूवर्ड्स डेथ, इससे डेथ भी कॉज हो सकती है, ठीक है। तो एडीएच जो है दैट इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द जो इंसुलिन इंसिपिडस है दैट इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन एडीएच, और जो डायबिटीज मेलाइटस है दैट इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन। बट दोनों में एज सच कोई रिलेशन नहीं है, जरूरी नहीं है जिसको डायबिटीज मेलाइटस है उसको डायबिटीज इंसिपिडस भी होना है। रादर जो डायबिटीज इंसिपिडस है ना दैट इज रेयर डिजीज एज कम्पेयर टू डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि जो डायबिटीज मेलाइटस है तो बहुत कॉमन डिजीज है, ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन डिजीज। बट जो डायबिटीज इंसिपिडस है ना दैट इज ए रेयर डिसऑर्डर बेसिकली, और पाकिस्तान में भी रेयर है, शायद अब्रॉड द कंट्रीज हो, लेकिन काफ़ी कम है कि जिन लोगों में एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई ज़ाहिर ट्रीटमेंट होता होगा। तो दिस इज़ अबाउट द डाइट थेरेपी इन डायबिटीज़ मेलाइटस। जो बेसिकली तो ये एंडोक्राइन सिस्टम वाली थी, लेकिन इसमें मैंने बताया कि हाइपरथायराइडिज्म और एक्सेसिव लीननेस वगैरह को हमने कवर नहीं करना। जो हमारा मेजर टॉपिक था दैट वाज डाइट थेरेपी इन डायबिटीज मेलाइटस, और हमने उसी को कवर किया है। इसके अलावा इसमें जो चीज़ रह गई है ना जो मैं समझती हूँ इम्पॉर्टेंट है, और वो रह गई हुई है, दैट इज़ द हाउ कैन वी टेस्ट द बेसिकली ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो हमारा एक फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया हुआ, और एक रैंडम होता है, ठीक है जी। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल और रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल दोनों की हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है जी वो अप टू 70 से लेके 100 तक नॉर्मल होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अप टू 120 मिलीग्राम 100 से 120 मिलीग्राम तक नॉर्मल होता है। तो हमने टेस्ट याद रखने हैं कि हम पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कैसे मेजर कर सकते हैं। तो दो हैं, खाए पिए बगैर सुबह नाश्ते से पहले जो शुगर मेजर होती है विच इज़ कॉल्ड एज द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, और किसी भी खाने के 2 घंटे बाद आफ्टर एनी मील, ठीक है, चाहे वो ब्रेकफास्ट है चाहे वो लंच है चाहे वो डिनर है, उसके बाद 2 घंटे बाद जो हम ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हैं दैट इज द रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। इसके अलावा देर आर सर्टन अदर टेस्ट जैसे कि HbA1c ग्लाइकेटेड जो है हमारी हीमोग्लोबिन, ठीक है। HbA1c हमें 3 मंथ्स की जो है ना शुगर का, पिछले 3 माह जो आपका शुगर लेवल रहा है उसके बारे में बताती है। तो HbA1c is another test by we can measure the sugar level of the patient। इसका बाद GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ये जो टेस्ट है ना ये मैं तुम लोग बताऊँ, बायोकेमिस्ट्री की जो हमारी किताब है उसमें डायबिटीज का एक चैप्टर है, उसमें जो है ना ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने फाइक अहमद की जो बायोकेमिस्ट्री की बुक है उसमें जो डायबिटीज का चैप्टर है उसमें ये टेस्ट आपने करने हैं। आज सब देख लो, इस लेक्चर के बाद जो है ना फाइक अहमद की बुक ओपन करो, डायबिटीज मेलाइटस का एक चैप्टर है उसमें जो टेस्ट हैं, सिर्फ सारा चैप्टर नहीं करना, लेकिन ये है कि जो टेस्ट हैं टेस्ट फॉर द डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, जिसमें फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है, रैंडम ब्लड शुगर लेवल है, HbA1c है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन वाला भी जब मैंने तुम लोगों को कहा था तो उसमें भी लिखे हुए थे, याद अगर तुम लोग को आ जाए, जो हीमोग्लोबिन वाला चैप्टर था उसमें भी ये टेस्ट दिया हुआ था HbA1c, ठीक है। 3 महीने की अच्छा टेस्ट है, ये हमें 3 महीने की शुगर के बारे में आइडिया दे देता है कि पिछले 3 महीने आपका शुगर लेवल क्या आ रहा है, बजाय इसके कि आप डेली डेली टेस्ट करवाओ। तो पेशेंट्स के लिए बड़ा एडवाइजेबल होता है, बड़ा इजी होता है कि आप जो है ना ये टेस्ट करवा लो। तो जी दीज आर द टेस्ट बेसिकली फॉर द डिटेक्शन ऑफ द शुगर लेवल ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा यूरिन में भी आप ब्लड ग्लूकोज लेवल वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है, विच इज़ अनदर टेस्ट। तो दीज आर द बेसिकली टेस्ट जो हमने लाजमी फाइक अहमद से करने हैं। तो जी मूविंग टुवर्ड्स द वाइंडिंग अप ऑफ द लेक्चर टुडे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क एनी टाइम। टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टडी द चैप्टर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द फाइक अहमद बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अब अगेन तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी यू हैव द प्लेंटी ऑफ द टाइम, इसको कोविड-19 को जो है ना प्रॉब्लम नहीं बल्कि ब्लेसिंग समझो कि थोड़ा टाइम मिल गया, ठीक है। तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। तो ट्राई टू यूटिलाइज दिस टाइम, यू आर एट होम और घर में ज़्यादा चांसेस हैं कि पढ़ सको, ठीक है जी। आने जाने वाला टाइम वेस्टेज जो था 4 बजे कॉलेज में जो रहना था वो सारी चीज़ें तुम लोगों को अब रिलैक्स हो, तो इस वजह से जो है असाइनमेंट से रिलैक्स हो, चार्ट बनाने से, पोस्टर प्रेजेंटेशन से, सारा दिन कंप्यूटर पे बैठने से। सो द लॉट ऑफ द वर्क विच हैज़ बीन गिवन टू यू गाइज इन द कॉलेज, that in these days you are free from all those burdens. So try to utilize this time, try to make this situation as a blessing in disguise, ठीक है।
तो इसको समझो कि ये ब्लेसिंग है। तो अपना टाइम यूटिलाइज करो, और प्लीज़ 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 जो हमने बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर किए हैं वो अपने अच्छी तरह रिवाइज करो। और इसको भी जी जिनको ज़्यादा जल्दी है अंबर, ओके अल्लाह हाफिज़, ठीक है जी। तो क्लास साइन आउट, ठीक है, सी यू टुमारो, थैंक यू।